Good morning, students. Now, today we will cover the topic lien. Lien, it's a normal legal language that emphasizes rights. अगर हम lien को normal language में बोलेंगे तो हम उन्हें rights कह सकते हैं. The lien is a part of bailment and pledge. The bailment and pledge we have already covered in the same unit. The bailment and the pledge part has been covered. जहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा था? Bailment, types of bailment, and the person involved in the bailment, like bailer and bailee. Pledge में there are two persons, pledger and pledgee. Now what is lien? Now lien is a right given to a person or taken from a person by an interest. For an example, I have mortgaged my house to someone else for the sake of property or for the sake of some money. Clear to everyone? So lien is a right. It can be given or it can be taken. On the other hand, the insurance companies gives the property or the rights of a lien. In the case of mortgage or in the case of renting, we give the right to the another person. अब मैं आप लोग को इसी चीज को दोबारा से समझाती हूँ. लीन हमको या तो मिल सकता है या हम लीन को ले सकते हैं. अगर लीन को हम नॉर्मल गूगल की फॉर्म में देखे जाके, गूगल की लैंग्वेज में देखे जाके, तो लीन का मतलब होता है इट्स अ नॉर्मल राइट. कि लीन मैम व्हाट डू यू मीन बाय लीन? लीन का मतलब क्या है लीगली? तो लीन सिंपली मींस अ पोजीशन ऑफ अ प्रॉपर्टी either given or taken, or we can say a lien is a form of right against which we can use the bailment or the pledge. ठीक, तो इसलिए इनिशियली हमको लीन का बेसिक मतलब समझना है. तो लीन क्या है? लीन एक राइट है that can holds a property or can be issued by another person to me to hold some property. जरूरी नहीं है कि हमेशा मेरी ही प्रॉपर्टी हो. It could be the possibility that my father has given me a right to hold his or her property. For an example, आप घर में 4 भाई बहन हैं. Now the elder one, जो सबसे बड़ा है, उसको फादर ने क्या दिया है? उसको फादर ने राइट दिया है to hold or to oblige the property for any other credit creation. बाकियों को ये राइट नहीं है. और in the case of father or in the absence of father, फादर की डेथ हो गई. Now mother has a whole soul right. That is a preceding right, or we can say that is a lien by the precedings. कि वो by default ही फादर से हटके किसको मिल जाता है? मदर को मिल जाता है. Now it's a choice of mother. The mother will distribute the right to each and every of his child. जैसे मैंने अभी कहा कि हम 4 भाई बहन हैं, और mother can say that I have 2 sons and 2 sisters. ओके, तो माय मदर हैज डिसाइडेड कि नहीं, मैं तो अपने सिर्फ 2 बेटों में ही डिवाइड करूंगी. अब उन्होंने अगर 2 बेटों में डिवाइड कर दिया है तो लीन राइट जो है वो कितनों में डिवाइड हो गया? इट इज डिवाइडेड इनटू पार्ट 2. नाउ इट कैन बी द ऑब्लिगेशन व्हेन मदर हैज सेड कि नहीं, मैं अभी बड़े बेटे को अपने साथ लेके चल रही हूँ. He is the joint nominee or he is the joint account holder in which each and every operations has been held previously with my husband. मेरा कोई जॉइंट अकाउंट है, फादर नहीं है, तो मदर किसके साथ जॉइंट हो गई है? मदर जॉइंट हो गई है बड़े बेटे के साथ. ठीक, मदर जॉइंट हो गई है एफडी में बड़े बेटे के साथ. मदर ने जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी करी उसमें कौन नॉमिनी है? बड़ा बेटा नॉमिनी है. तो बाय डिफॉल्ट ही हैज अ पावर ऑफ लीन. तो वो उसको यूज कर सकता है. उसको यूज कैसे कर सकता है? इफ यू वांट टू टेक अ लोन फ्रॉम अ बैंक, if you want to mortgage the land, or if you want to give a rental house property to someone else, तो वो उसको यूज कर सकता है. तो lien can be transferred also, lien can be given also, and lien can be taken also. For an example, आपने किसी की घर को कहा कि you go to the vacation and I will take a good care of your house. There is no requirement to take any kind of tension. You go for 15 days of vacation. अब ना 15 days of vacation the some other party has been enjoyed. एक बंदा आया है और वो कह रहा है कि वो कुछ पैसे देगा और वो हमारे घर में कुछ दिन रहना चाहता है. So I can mortgage your house, I can lien your house, I can rent your house or not. तो अब उन्होंने कहा yes, you can rent it. You can rent it and when I will come back, you can give money to me. जब मैं आ जाऊंगा तो पैसे आप मुझे दे दीजिएगा. तो in that case the lien is by default created from one person to another person. So lien is a normal term used
in legal language where we have defined. In case अगर आपको लगता है कि any topic that is not clear, you can contact me personally or you can mail me personally. In my each session, I am just giving my contact number, that is 9720083334, and my email ID is anshu.management management management@tmu.ac.in. So it's nothing to worry. You can call me or you can mail me, and the same notes has been given to you also. A lien is a legal right or an interest. The same word I have used here. मैंने क्या यहाँ पे शब्द का इस्तेमाल करा है? Interest. Interest means कि वो चीज आपने अपनी इच्छा से काम करने के लिए मांगी है. राइट में आपको वो चीज अपने अधिकार के तौर पे मिली है. तो जहां मैंने बड़े बेटे की बात करी थी तो वो कौन सा एग्जाम्पल था? दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ राइट. ठीक है, किसका एग्जाम्पल था? दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ राइट. क्योंकि मैं बड़ा बेटा हूं या मैं एक ही बेटा हूं, मेरे फादर और मेरी मदर के बाद मैं उनका एक ही चाइल्ड हूं, तो वो बेटा क्या है? वो मुझे छीनना नहीं पड़ेगा, वो मेरा इंटरेस्ट नहीं है. दैट बिकम्स माय राइट. ओके, तो अब यहाँ पे मेरे पास एक इंटरेस्ट है या फिर एक राइट है, जहां पे क्रेडिटर तब तक उस चीज को ऑब्लाइज करेगा जब तक मेरा फुल पेमेंट ना आ जाए. फुल पेमेंट ना आ जाए दैट मींस fully satisfied मैं ना हो जाऊं. This is the only reason the word satisfaction is written here. ठीक है, I need to be full satisfied. मुझे लगना चाहिए कि मैंने जितना पैसा दिया था या मैंने आपको काम करने के लिए जो भी चीजें दी थी अब वो मेरी पूरी तरह से हो चुकी है. ना उसमें प्रिंसिपल अमाउंट बाकी है, ना ही उसमें कोई इंटरेस्ट बाकी है, तो मुझे पूरा पैसा मिल गया. फॉर एन एग्जाम्पल, आपने किसी को रेंट पे एक घर दिया अपना. ठीक है, मान लीजिए कि आप मम्मी के बड़े बेटे हैं और आप एक लौते ही बेटे हैं या आप एक लौती बेटी है. डोंट टेक इट एज जेंडर वाइज. ठीक, आप में से जो भी बच्चा सुन रहा है, मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि मम्मी के पास अब और कोई नहीं. ठीक, अब आपने ये डिसीजन लिया कि मैं ये घर इनको रेंट पे दे देती हूँ और अपनी मम्मी को अपने साथ बैंगलोर रखूंगी. ठीक, अब क्या हुआ? उन्होंने आपको रेंट देना शुरू करा. आप 6 महीने बाद घर गए, आपने देखा कि आपके घर में बहुत जगह जगह हथौड़ी से ठोक ठाकी करी गई है. आपने देखा लोगों ने स्टिकर लगा रखे हैं, पेंटिंग लगा रखी है, सेलो टेप के दाग हैं. अब आपने कहा आपने तो बहुत खराब कर दिया है मेरा घर तो फुल फर्निशिंग मांग रहा है. या आपने विंडो एसी की प्लेस दी थी, उन्होंने आपसे बिना पूछे स्प्लिट एसी के लिए स्पेस बनवा के स्प्लिट एसी लगवा लिया. ठीक, ऐसे बेटा इन नंबर ऑफ एग्जांपल्स हो सकते हैं, है ना. लेकिन फाइनली आपको ये समझ में आया कि मुझे जितना रेंट मिला है वो सफिशिएंट नहीं है. तो अब आप सेटिस्फाइड नहीं है, यू आर अनसेटिस्फाइड. तो सेटिस्फैक्शन वर्ड का इस्तेमाल क्यों करा गया है? इसीलिए करा गया है कि आपको ये फील हो कि जितना आपका ऑब्लिगेशन था वो फुली सेटिस्फाइड है या फिर नहीं है. तो आपको इसमें क्या होना है? फुली सेटिस्फाइड. आपको ये कभी ना लगे कि आपका कोई भी पैसा मारा गया है. Single penny of yours is being returned to you. Okay, so this is the importance of the word satisfaction in lien. Okay, अब वो कह रहा है in the essence of lien. अगर lien है ही नहीं, in the essence of lien है ही नहीं, the creditor to retain the possession of the property until the debt of the obligation is being discharged. अब उसके पास right है. अब उसके पास क्या है बेटा? राइट है कि वो आपको वो चीज अभी दोबारा ना सौंपे. क्लियर? क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं है. तो अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप पूरी तरह से अपने राइट का यूज कर सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि इन द एब्सेंस ऑफ, किसका एब्सेंस है बेटा? इन द एब्सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन रिटर्न. मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखने का चाह रही हूँ जिससे कि जो भी बच्चे हैं उसको आराम से समझ पाए. इन द एब्सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन रिटर्न, कि जितना मुझे चाहिए था मुझे लग रहा है अभी उतना मुझे नहीं मिला. यू कैन होल्ड द प्रॉपर्टी. हम क्या कर सकते हैं? इन द एब्सेंस है नहीं वो चीज, एब्सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन रिटर्न, वी कैन होल्ड द प्रॉपर्टी. अब आपके मन में आ सकती हैं 2 क्वेश्चंस कि मैम वी कौन है? पॉइंट नंबर 1 एंड द पॉइंट नंबर 2 प्रॉपर्टी में क्या क्या आ सकता है. ठीक है, तो हम पहले पॉइंट नंबर 1 डिस्कस करते हैं कि वी कौन है.
अच्छा, वी बेटा वो होगा जिसके पास सारे राइट्स होंगे। ना हु इज वी? वी वो व्यक्ति है जिसके पास सारे क्या है? राइट्स है। ठीक है, कैसे राइट्स है? राइट्स टू होल्ड द प्रॉपर्टी। क्लियर है? राइट्स टू होल्ड द प्रॉपर्टी। अच्छा, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी किसे किसे कह सकते हैं? ये भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। जरूरी नहीं है बेटू कि प्रॉपर्टी के केस में हम लैंड की ही बातें करें, दैट इज नॉट कंपल्सरी। प्रॉपर्टी के साथ क्या हो सकता है? हो सकता है कोई फिक्स डिपॉजिट होना तो देखो एसेट के फॉर्म में हो सकता है कोई रेंटल इनकम हो सकता है कि आप अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस कहीं चलाते हो, है ना। जैसे फॉर एन एग्जांपल कि आप घर में ही आप अपने घर में ही क्या करते हैं? एक छोटा सा ट्यूशन क्लास चलाते हैं। ठीक, तो हो सकता है कि उस घर के उस पोर्शन में आपका बहुत इंटरेस्ट हो, क्योंकि वो आपका क्या है? वो आपका इनकम का सोर्स है। तो मैंने ट्यूशन लिखा है, ट्यूशन क्लास। क्यों? क्योंकि वो आपका क्या है बेटा? सोर्स ऑफ इनकम। क्लियर? तो वी ये सारे लोग हो सकते हैं, और वी इस तरह से प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं। वी अपना इस तरह से राइट्स मांग सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बहुत ही अच्छा सा एक क्लॉज है। आप ये मान के चलिए कि आपने 25 साल से अपना घर नहीं देखा है, फ्रॉम लास्ट 15 years or 25 years or 50 years you never been to that place। अब आपका घर शिमला में है, कहीं दार्जिलिंग में, and you are living in London or UK or you are living in Bangalore, you are living with your parents, आप अपने पेरेंट्स को भी अपने साथ ले गए, and you are working there, you are fully settled there। ठीक है ना, पर्सन इज गिविंग यू अ रेंटल इनकम एवरी मंथ। वो पर्सन आपको रेंटल इनकम हर मंथ तो ऑफर करेगा। नाउ इन दैट केस, अब आपने नहीं देखा, अगर आपके नाम पे ही इलेक्ट्रिसिटी बिल है, क्या है आपके नाम पे? आपके नाम पर ही इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये मैं पॉइंट अलग से देखिए नीचे एम्फेसाइज कर रही हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके नाम पे। आप कौन है? आप घर के ओनर हैं, जो अभी आप वहां पे नहीं रह रहे हैं, लेकिन घर में कोई बंदा रहता है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, ये जितनी बार भी सबमिट होता है उसमें आप ही का नाम आता है। एंड नाउ हम अपने एग्जाम्पल के लिए लिख लेते हैं कि जिनका नाम है उनका नाम सुरेश है। तो हर बार बिल में किसका नाम आ रहा है बेटा? सुरेश जी का नाम आ रहा है। किसका नाम आ रहा है? सुरेश। ओके, हर बार सुरेश जी का नाम आ रहा है। अब इस केस में कोई गलती नहीं है, आप 25 साल से नहीं है, लेकिन जब भी आप उनको पैसे दे रहे हैं, किनको? जो आपके घर में रह रहे हैं, जो रेंट पे आपके घर में रह रहे हैं, आप उन्हें पैसे दे रहे हैं, वो बिल जब भी रिसिप्ट आ रही है उसमें आप ही का नाम पड़ा है। आप ही हाउस ओनर है। आप ही क्या है? हाउस ओनर है। मेन हाउस ओनर आप ही हैं। ओके, ठीक है। अब लेकिन ऐसा हुआ कि 25 साल बीत गए, अब आपके घर में जो रह रहे थे उनका नाम था राजीव। Now Rajiv is not the landowner. राजीव ओनर नहीं, बट मैंने बट लगाया, लेकिन he is living in your property। कहाँ रह रहा है? आपकी प्रॉपर्टी। फ्रॉम लास्ट 20 years और वी कैन से 25 years, बढ़ा लीजिए, ये आजकल बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली हो गई हैं, और वी कैन से 25 years। अब आपके नाम पे कभी कुछ ऐसा भी नहीं हुआ है कि कोई बैलेंस कट रहा हो, या आपके नाम पे कोई लेटर आ रहा हो, या आपको कोई दिक्कत फेस करनी पड़ रही हो, ऐसा कोई इशू तो नहीं है ना। आपके पास कोई मैसेज आ रहा है, whenever Mr. Suresh is asking to Mr. Rajiv कि क्या बिल जमा हो गए, तो राजीव इज सेइंग यस सर, बिल तो जमा हो गए। एवरी टाइम राजीव इज सेइंग कि बिल तो जमा हो गए, कोई इशू नहीं आ रहा है। ठीक है, अब उस केस में यहां आपको थोड़ा सा थॉटफुल सोचना है कि 25 साल बाद अगर आप अपने घर जाएंगे
तो हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोर्ट ये कह दे कि भाई ये आपका घर है भी या नहीं। तो लीन, अब हम दोबारा से आ जाते हैं सेम शब्द पे, लीन। लीन में जो वी है वो चेंज हो गया है, डाउटफुल केस हो गया है, क्योंकि हाउस रेंट, इनकम, टैक्स सब किसके नाम पे आ रहा है? इन द नेम ऑफ द राजीव। अब टेक्निकली कोड के हिसाब से 25 साल से घर का मालिक कौन है? राजीव जी। तो क्या आप क्लेम कर पाएंगे? अब क्या आप उस लैंड को प्रॉपरली क्लेम कर पाएंगे? लेकिन राजीव जी आराम से कर लेंगे। तो ये चीज हमें बहुत ध्यान देनी है, वेरी थॉटफुली वी हैव टू थिंक दिस, कि कभी भी ऐसा इशू आए तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें बार बार लोगों से एफिडेविट लेना है। ओके, हमें क्या लेना है बार बार लोगों से बेटा? एफिडेविट लेना है। और कोर्ट भी कहती है कि कभी भी किसी को बिना एफिडेविट के ना रखिए, और हर बार नया एक्सटेंशन कराइए, 11 महीने का कराइए, और हर 1 महीने बाद या 1 साल बाद रेंट में कुछ प्रपोर्शन इंक्रीज कर दीजिए। चाहे 10% करिए बेटा, चाहे 5% करिए, चाहे 2% करिए, पर आपको करना तो है। ठीक है, तो इन दैट केस ये हमेशा साबित होगा, दैट इज ऑलवेज बीन प्रूवन, कि आप ही घर के मालिक हैं और वी कभी भी चेंज नहीं होगा। ओके, तो नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमने ये समझ लिया है कि वी कौन है। अब वी कौन व्यक्ति हो सकता है? वी हर वो व्यक्ति हो सकता है जिसके पास राइट है कि वो अपने राइट का अच्छे से यूज करे। ठीक, तो वी इज अ पर्सन। अब हम कह रहे हैं कैन होल्ड द प्रॉपर्टी। वी क्या कर सकता है? वी प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकता है। ठीक, अब कैसे होल्ड कर सकता है? ठीक, कैन होल्ड द प्रॉपर्टी। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी कैसी हो सकती है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वी में तो मुझे समझ में आ गया है, लेकिन प्रॉपर्टी में क्या क्या आ जाएगा? प्रॉपर्टी में हर वो एसेट आ जाएगा जो आपको फ्यूचर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो मैं प्रॉपर्टी में बहुत सारे एग्जांपल्स तो नहीं कोट करना चाह रही हूँ क्योंकि आप लोग इससे कंफ्यूज ना हो, लेकिन एक शब्द लिख के दे रही हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, दैट इज एसेट्स। हर उस तरह का एसेट बेटा, जैसे कि कोई बगिया है आपकी जिसमें आम निकलते हैं, आजकल बड़ा सीजन है, बगिया है, आम निकलते हैं, आप बेचते हैं, उनको यूज करते हैं। मान लीजिए कटहल की बगिया है, वो भी आपका प्रॉपर्टी है। इसमें ये मत समझिएगा कि बिल्डिंग ही होनी चाहिए, ऑफिस ही होना चाहिए, या फिर कोई घर ही होना चाहिए। आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है, वो भी आपकी प्रॉपर्टी का पार्ट है। आप ऐसी हर चीज को लीन कर सकते हैं जो आपके लिए एसेट के तौर पे आपके साथ है। अच्छा, क्वेश्चन आ रहा होगा बच्चों के मन में कि मैम कार भी तो हमारे लिए एक प्रॉपर्टी है, तो हम कार को लीन कर सकते हैं? मैम ने तो एसेट लिखा है, और कार क्या है बेटा? एसेट है। मैंने क्या लिखा है? कार, और कार क्या है? एसेट है। तो कार के केस में क्या लीन होगा? बिल्कुल होगा, कार को भी लीन किया जा सकता है। आप अपनी कार को किसी को मॉर्गेज दे दीजिए, ठीक है, किसी से कुछ रुपए ले लीजिए और कहिए कि कुछ दिनों के लिए मेरी ये कार अपने पास रख लीजिए, मैं आपको महीने की 1 तारीख को आके अपना पैसा वापस कर जाऊंगा, आई विल रिफंड यू द फुल अमाउंट। अब इन दैट केस कार क्या हुई आपकी? कार इज अ प्रॉपर्टी दैट यू हैव यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ लीन। क्लियर टू एवरीवन? कोई कहे मैम फिर तो गोल्ड भी हो सकता है, किसी बच्चे के मन में आ रहा, वैसे बॉयज के मन में कार आ रहा होगा और गर्ल्स के मन में गोल्ड आ रहा होगा, है ना? तो बेटा गोल्ड भी आपका क्या है? ऐसे आप क्या गोल्ड हम लीन कर सकते हैं? तो जैसे मैंने आपको अभी कार का एग्जांपल दिया, सेम एग्जांपल मैं दोबारा आपको कोट कर रही हूँ कि भाई बेटू जब कार एक एसेट है हम उसको लीन कर सकते हैं, तो गोल्ड भी तो एसेट है, तो हम उसको लीन के केस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कैसे? हम तो अपना जेवर कभी किसी को देते ही नहीं है, मैं तो अपनी सगी ताई जी को भी ना दूं, है ना? या मेरी मम्मी तो किसी और को कभी दे ही नहीं सकती है, वो तो मुझे देने से पहले भी बहुत गुस्सा होती है। तो आप इसे मॉर्गेज कर सकते हैं बेटा, जैसे मुट्ठूस फाइनेंस, है ना? एक कंपनी है, आप लोगों ने सुनी होगी, इसमें अमिताभ बच्चन ऐड भी करते हैं, ठीक है?
तो मुथूट फाइनेंस क्या कहता है कि बिजनेस करने के लिए हमको अपना जेवर दीजिए, हम आपको लमसम पैसे दे देंगे, बिजनेस कर लीजिए और बाद में अपना जेवर हमसे ले जाइए। क्लियर टू एवरीवन? आई थॉट दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ लीन। हम कैसे कैसे लीन कर सकते हैं, कि व्हाट आर द बेसिक क्राइटेरिया, हम कैसे कैसे लीन कर सकते हैं। नाउ एज यू कैन सी द फर्स्ट लीन इज वॉलंटरी लीन। वॉलंटरी लीन का देखिए मतलब समझ लीजिए। वॉलंटरी मीन्स स्व इच्छा से, मेरी इच्छा है। हम लोग कहते नहीं कि ब्लड डोनेशन कैंप के लिए चलना है, प्लीज रेज द हैंड्स इफ यू आर इंटरेस्टेड। तो जिन बॉयज को रहता है कि यार आई एम फिट एंड फाइन एंड आई कैन कंट्रीब्यूट माय ब्लड टू समवन एल्स फॉर द सेव ऑफ द अदर लाइव्स, दे रेज द हैंड। तो जैसे आप हाथ खड़ा करते हैं, कैसा एक्शन है ये बेटा? वॉलंटरी एक्शन है। ठीक, अभी मैं आप लोगों से कहती हूँ फॉर एन एग्जाम्पल कि कौन कौन बच्चा नेक्स्ट क्लास में पीपीटी भेजेगा मुझे और मैं उसको यहाँ चलाऊंगी। मुझे 2 मिनट के अंदर मैसेज करिए मेरे नंबर पे। ठीक, अब 2 मिनट के अंदर जितने बच्चों का मेरे पास मैसेज आएगा तो ये क्या हो जाएगा? वॉलंटरी लीन। क्लियर? अब वॉलंटरी लीन क्या होता है? इट इज क्रिएटेड बाय द एग्रीमेंट बिटवीन द डेबिटर एंड द क्रेडिटर। अच्छा, जो नॉन फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डेबिटर एंड द क्रेडिटर? इसमें कौन सा वाला डेबिटर क्रेडिटर चल रहा है बेटा? डेबिटर जिसकी प्रॉपर्टी गई है, क्रेडिटर जिसकी प्रॉपर्टी आई है। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस वाला चल रहा है। कौन सा वाला चल रहा है? ऑल प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड एंड ऑल लॉस आर डेबिटेड। जैसे आपके खाते में पैसा आता है ना, तो होने को तो एसेट साइड अगर आप देखा जाए तो कौन सा वाला लॉ लगता है? यही वाला लॉ लगता है, क्योंकि आपके लिख कर आता है ना, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड टू ₹1 लाख। ठीक है, यही तो लिख कर आता है, क्योंकि ऑल प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड। और अगर कटता है तो क्या लिख कर आता है? ₹5,000 has been debited from your account towards the electricity bill. ओके, तो इसमें ये वाला डेबिट और क्रेडिट है। क्लियर है सबको? वो क्या कह रहा है, क्यों है ये वाला, ये भी समझ लीजिए। ये वाला इसलिए है बेटा क्योंकि हम कुछ चीज दे रहे हैं, बदले में कोई चीज ले रहे हैं। हमने कुछ पैसा दिया, हमने कुछ पैसा लिया, हमने कोई प्रॉपर्टी दी, बदले में पैसा ले लिया, या हमने पैसा देने के बाद वो प्रॉपर्टी उसको यूज करने के लिए दी। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आप होटल बुक करते हैं या आप कोई रिजॉर्ट बुक करते हैं, तो क्या होता है? आप पहले उसकी बुकिंग कर लेते हैं। आप रेलवे में जाते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, तो तब क्या होता है? इन दैट केस व्हाट डू यू फील? सेम इशू है कि आप पहले टिकट की बुकिंग कर लेते हैं और तभी आप उस प्रॉपर्टी का अच्छे से यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप विदाउट टिकट चले जाएं ट्रेन में, तो क्या आपके पास राइट है उसका यूज करने का? नहीं है। और कोई एग्जांपल बताइए। जैसे मैंने आपको डेबिट क्रेडिट वाला बताया, आप दूसरा एग्जांपल सोच सकते हैं कि मैम हम मूवीज देखने भी तो जाते हैं। मैंने जैसे आपको ट्रेन का एग्जाम्पल बताया, दूसरा एग्जाम्पल क्या है बेटी? आप मूवी देखने जाते हैं ना, मूवी का एग्जाम्पल भी है ना। और कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है बताइए? आप कोर्ट जाते हैं, ऑलरेडी आपके पास वकील होता है, आपका पर्चा ऑलरेडी लगा होता है, जो कि वॉलंटरी एक कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर पाएंगे। अब वो ये कह रहा है कि वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए और उसका ऑब्लिगेशन होना चाहिए और हम वो चीजें मॉर्गेज कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अच्छा, इसका कोई लॉ क्यों नहीं है या लॉ की बहुत रिक्वायरमेंट क्यों नहीं होती है? मैंने इसको राइट की तरह आपको क्यों पढ़ा दिया? मैंने कहा राइट ऑफ अ लीन, टाइप्स ऑफ अ लीन। मैंने ये क्यों नहीं कहा कि लीन इज अ कॉन्ट्रैक्ट? मैंने कॉन्ट्रैक्ट शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं करा? क्योंकि कभी कभी हम जो आपस में करते हैं बेटा, लेन देन या रेंट पे किसी को रख लेना या गाड़ी अपने दोस्त को दे देना, हम कोर्ट कचहरी जाके इसका एग्रीमेंट नहीं बनवाते। वी नेवर मेक द एग्रीमेंट फॉर दैट, है ना। इट डजंट रिक्वायर एग्रीमेंट ईच एंड एवरी टाइम, है ना। लेकिन हमको अपने लीन के राइट्स पता होते हैं, ठीक है। तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज राइट, कि मुझे मेरे राइट्स पता है, उनको उनके राइट्स भी पता है। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, ना एग्रीमेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया। लीन इसीलिए नाउन है, इसीलिए जब भी आप लीन की डेफिनेशन पढ़ेंगे इट इज यूज्ड एज नाउन, क्योंकि ये सबके लिए सेम है। जैसे ताजमहल है, मेरे लिए भी ताजमहल है बेटू, आपके लिए भी ताजमहल है। आपके फादर देखने गए होंगे तो भी ताजमहल था, आपके दादाजी देखने गए होंगे तो भी ताजमहल था। ताजमहल विल नॉट चेंज फॉर एनीवन, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका फ्रेंड जाए और कहे कि यार फॉर मी द ताजमहल कलर इज पिंक,
ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि वो कहे कि मेरे लिए ताजमहल का कलर गुलाबी है एंड फॉर एवरीवन ताजमहल इज ऑफ व्हाइट मार्बल, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये नाउन है, लीन इज अ नाउन, इट इज सेम फॉर एवरीवन। इसीलिए इसके आगे एग्रीमेंट शब्द का या कॉन्ट्रैक्ट शब्द का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है, ये हमें पहले से पता है, ठीक। इसीलिए टाइप्स ऑफ लीन है, ठीक। इसमें हमने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक कि जहां ये जाहिर हो कि हम अगर ये नहीं करेंगे तो हमारे साथ कोई दिक्कत परेशानी आ जाएगी। क्लियर टू एवरीवन? सेकंड लीन में आ जाते हैं हम लोग। ये मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा है, इसलिए सीक्वेंसिंग चेंज ठीक है। इनवॉलंटरी लीन। इनवॉलंटरी लीन का मतलब है कि हम दोनों एक चीज में आ तो गए हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए, एक एग्रीमेंट ले लीजिए, एक टॉपिक ले लीजिए, लेकिन वो वॉलंटरी नहीं है, दैट इज नॉट वॉलंटरी। वो कैसा है? वो इनवॉलंटरी है, ठीक है। अब फॉर एन एग्जांपल, इनवॉलंटरी मींस कि वो ऑलरेडी ऑपरेशन ऑफ लॉ से है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, आप कार में बैठे, आपको सीट बेल्ट लगाना है, आप बाइक पे बैठे, आपको हेलमेट लगाना है, ठीक है। आपको पता है कि ज़ेब्रा लाइन है, तो पहले जो पैदल जा रहे हैं अगर रेड लाइट है तो वो क्रॉस होंगे कि नहीं होंगे? तो वो इनवॉलंटरी है बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। आप ये जानते हैं आप चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे तो डांट खाएंगे। ऐसा हो सकता है पॉसिबल कि आप चोरी करें, पकड़े जाएं और आपको बहुत अप्रेस करें हम लोग, मैं बहुत खुश हो जाऊं, मम्मी पापा बहुत खुश हो जाएं? ये पॉसिबल नहीं है ना, ठीक। या ऐसा हो सकता है कि आप किसी को खून कर दें और फिर आपको बहुत शाबाशी मिले कि वाह आज आपने बहुत अच्छा करा, आपको कोई भी तरह की सजा नहीं मिलेगी। चलिए मान लीजिए आपके हाथों एक क्रिमिनल मारा गया, क्या तब भी सरकार आपको छोड़ देगी? नहीं बेटा, सरकार आपको प्रेज नहीं करेगी, सरकार कहेगी ये मर्डर है। तो इन दैट केस आप गवर्नमेंट के साथ उस कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं। तो अगर आप उसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं तो दैट इज ऑपरेशन ऑफ लॉ, दैट डजंट नीड अ एडिशनल कंसेंट ऑफ द डेबिटर। ऑलरेडी उसमें डेबिटर की कंसेंट होती है कि मुझे ये चीज बचपन से बताई गई है एंड आई डोंट नीड द एडिशनल कंसेंट। बार बार सरकार आके मुझसे इसके लिए कंसेंट नहीं लेगी, द कंसेंट इज ऑलरेडी इन्वॉल्व। तो इन दैट केस वी सिक्योर, एस्टैब्लिश एंड अ पेमेंट फॉर द डेबिटर एंड द क्रेडिटर। फॉर एन एग्जांपल, टैक्स। गवर्नमेंट का है, हम सब टैक्स भरते हैं, आपके फादर भी भर रहे हैं, मैं भी भर रही हूँ, मेरे फादर भी भर रहे हैं, हम सब टैक्स भरते हैं। तो क्या हम सरकार को बेटा झूठी खबर दे देंगे? अगर हम टैक्स भर रहे हैं तो हम सच्ची खबर ही तो देंगे ना सरकार को। या गवर्नमेंट ये मान के चलेगी कि हमने उनको झूठी खबर दे दी है, गलत है ना। तो गवर्नमेंट का राइट है कि आप जो टैक्स भर रहे हैं, अगर आपने गलत करा है तो गवर्नमेंट आपको उसके लिए पनिश करे, और ये आपकी ड्यूटी है कि आप गवर्नमेंट को बिल्कुल सही बात बताएं। जितने बच्चे भी आज पढ़ रहे हैं उन्होंने सबने एडमिशन लिया है, एडमिशन में नीचे एक टिक बॉक्स होता है कि whatever the information you have provided to me is right according to your consent। आपने जितनी भी मुझे मार्कशीट्स दी हैं, अपना आधार कार्ड दिया है, 10th और 12th की मार्कशीट दी है, ये सब कुछ सही है। आप इस बॉक्स पे टिक करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये क्या है बेटा? ये ऑलरेडी लीन है मेरे और आपके बीच में। देयर आर एन नंबर ऑफ फॉर्म्स जो आप बैंक में भरते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भरते हैं, जिसमें आप डिक्लेरेशन पे टिक करते हैं कि आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो पूरी तरह से सही है। तो उसको हम क्या कहते हैं? लीन बाय इनवॉलंटरी। नेक्स्ट आ जाइए, इक्विटेबल लीन। इक्विटेबल लीन वो होते हैं जो कि सरकार आप पे इंपोज करती है फॉर द एनरिचमेंट ऑफ द एक्टिविटी। नाउ द टॉपिक वी हैव कवर्ड इज इक्विटेबल लीन। तो इक्विटेबल लीन क्या है बेटा? इक्विटेबल लीन वो है जो गवर्नमेंट आप पे इंपोज करती है जस्ट टू एनरिच द एक्टिविटी दैट इज गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फॉर एन एग्जांपल, the equitable lien is based on the property of the fairness। fairness का मतलब है यहाँ पे गवर्नमेंट के वो राइट्स तो हम सबके लिए समान है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कि दहेज किसी को भी नहीं लेना चाहिए, ना दहेज देना चाहिए। आप लड़के हंस रहे होंगे, ऐसे कैसे मैम? लड़कियाँ सोच रही होंगी मैम तो बिल्कुल सही बात कह रही हैं। तो फेयरनेस लीन्स वो होते हैं बेटा जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना कोई जाति देखती है, ना भेदभाव करती है, ना ही कोई ऐसी बात करती है कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम क्रिश्चियन हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, ये सबके लिए है। जैसे फॉर एन एग्जांपल हमारे यहाँ जेंडर रिवील करने की प्रथा नहीं है। बिफोर गिविंग बर्थ जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो जेंडर नहीं रिवील कर सकते हैं भारत
हैं, बट व्हेन यू गो टू अमेरिकन और यू गो टू दुबई, दैट इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। वहां पे आपको पहले से पता होता है कि आपका बेबी गर्ल है और बेबी बॉय है। इन इंडिया यू कैन नॉट प्रैक्टिस दीज थिंग्स, ठीक है ना। तो फेयरनेस जो होती है वो इस तरह की चीजों में होती है कि जहाँ अमीर आदमी ये ना कहे जाके कि देखिए सर हम तो बहुत अमीर, हमको बता दीजिए हमारा लड़का होने वाला है या हमारी लड़की होने वाली है। या कोई गरीब जाके ये ना कहे कि हम तो बहुत गरीब हैं, हम तो नहीं पाल सकते लड़की, ठीक है। तो आप हमें बता दीजिए कि अगर लड़की है तो हम नहीं कर पाएंगे। तो फेयरनेस का मतलब है सरकार के वो नियम और कानून जो हम सबके लिए बराबर है, ठीक है। अब कोई आप सोच कर बताइए जल्दी से, या मुझे जल्दी से व्हाट्सएप करिए तो मुझे पता चल जाए। दूसरा एग्जाम्पल ड्राइविंग है ना, ड्राइविंग के नियम कानून लड़की और लड़के के लिए बिल्कुल सेम। सरकार कभी ये नहीं कहती कि तुम 18 से ऊपर हो तो लड़की हो तो गाड़ी नहीं चला सकती। सरकार कहती है किसी को भी गाड़ी चलानी है, किसी को भी अपनी टेस्ट ड्राइव करानी है, आप आए, आप रजिस्टर कराएं, अपना प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं और आके अपनी गाड़ी चला सकती है। तीसरा बताइए, खुद सोचिए जल्दी से, फेयरनेस, राइट टू वोट, वोट दे सकते हैं ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे उम्रदार हो चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बहुत यंग एज के हो। सरकार ने एक नियम बना दिया है कि 18 साल का होना चाहिए, एंड दैट इज ट्रू। सरकार उसके बाद कुछ भी नहीं सोचती। सरकार ऐसा कहती है कि वोट देने आए हैं तो पहले अपनी कास्ट बताइए, या जो गोरे लोग हैं वो आगे खड़े हो जाएंगे, जो काले लोग हैं वो पीछे खड़े हो जाएंगे। या सरकार ऐसा कभी कहती है कि जो बहुत अमीर है वो आगे खड़े हो जाएं, जो बहुत गरीब है वो पीछे खड़े हो जाएं। या सरकार कभी रिवर्स ऑर्डर में कहे कि जितने भी पिछड़ी जाति वाले हैं वो आगे चले और जितने भी उच्च जाति वाले हैं वो पीछे चले। सरकार इसमें कहाँ कुछ कहती है। आप जाइए, लाइन लगाइए, पंचिंग करिए, जिसको वोट देना है वोट दीजिए, बाहर आ जाइए, है ना। तो बेटे सरकार की ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो इन सबसे परे हैं, जहाँ पे हमें ये फील होता है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे किसी के लिए भी भेदभाव नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसी चीज को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं बेटा, इक्विटेबल लीन। तो इक्विटेबल लीन में क्या होता है, फेयरनेस, इक्वालिटी। फॉर एन एग्जांपल ही इम्पोज करा गया है किसी प्रॉपर्टी पे जिसमें उस प्रॉपर्टी का कोई भी गलत उपाय ना हो पाए, कोई भी गलत यूज या मिसयूज ना हो पाए और उस प्रॉपर्टी का प्रॉपरली बेनिफिट मिले उस इंसान को जो उसका ओनर है, ठीक है। स्पेसिफिक लीन का मतलब होता है बेटा कि किसी तरह के कर्जे को उतारने के लिए एक स्पेसिफिक तरह की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाना, जैसे कि मॉर्गेज करना, है ना। मान लीजिए कि आप हाउस लेने गए, ठीक है, आपने कहा मुझे घर बनवाना है, तो उसमें सबसे पहले बेटा जमीन आती है। तो ये स्पेसिफिक हो गया, क्योंकि आपको हाउस बनाने के लिए लोन तभी मिलेगा जब आपके पास जमीन होगी। आप देखिए जमीन खरीदने के लिए लोन नहीं मिलता, हाउस लोन होता है, लेकिन टू बाय द लैंड लोन नहीं होता। तो इस तरह से जब हम इस तरह की चीजों की बात करते हैं तो किसमें चले जाते हैं बेटा, स्पेसिफिक लीन, ठीक है। जर्नल लीन हर उस चीज पे लगता है जहां पे हमको ऐसा लगता है कि इस चीज का इस्तेमाल हम आज भी कर रहे हैं, आने वाले वक्त में भी करेंगे। वो एसेट होना चाहिए, जैसे हमने पहले पढ़ा है, जैसे कार, फर्नीचर, हाउस, एसेट होना चाहिए। अगर एसेट नहीं है तो हमारे इतना काम का नहीं है, क्योंकि हम इसको नीड में पढ़ रहे हैं। और अगर एसेट है और हम उसका इस्तेमाल आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे, आने वाले समय में हमारे बच्चे भी करेंगे, तो हम उसको जर्नल लीन में ले जाएंगे, क्योंकि वो मैं ही नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी करेंगे, मेरी डॉटर भी, मेरा सन भी हो सकता है, मेरे साथ मेरे ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर रहते हैं तो वो भी यूज करेंगे, है ना। तो हम इस तरह की चीजों को किसमें ले जाते हैं बेटा, जर्नल। क्लियर। नेक्स्ट, परचेज मनी लीन। ये तभी अराइज होता है जब हम कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के लिए एज एन डेबिटर का रोल प्ले करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पहले क्लियर होनी चाहिए कि किस चीज के लिए करना है, वो चीज क्या है, कहाँ है, कितने की है, कितने स्क्वायर में है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कितनी कीमत की है, आप कब लेना चाहेंगे, कब वापस करेंगे कर्जा। अगर इस तरह के कुछ संबंधित बातें हैं कि जिसमें हमको पता है कि यही चाहिए और इसी की कीमत है और इसी के विषय में सब बातें हैं, तब बेटा क्या आता है, परचेज मनी लीन, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कार लो, अब आप कार जब भी आप लेते हैं तो आप स्पेसिफिक करते हैं, मुझे वरना पसंद है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं ये कहूँ
कि मुझे वरना का लोन लेना है, ठीक है, तो वरना का ही लोन आएगा, वो पूरा परचेज एलिमेंट उनके ऑफिस से निकलेगा। मान लीजिए मेरा खाता HDFC बैंक में, HDFC बैंक में जमा होगा, HDFC बैंक मुझे कार या व्हीकल लोन जिसे कहते हैं वो देंगे, और वो लोन का पैसा कहाँ जाएगा, सीधे शोरूम में चला जाएगा। उनका मेरे पास फोन आएगा कि मैम आपका पैसा आपके बैंक से हमारे पास आ गया है और आके अपनी गाड़ी ले जाइए। तो इस तरह के केसेस को हम किस में ले जाते हैं बेटा, परचेज मनी लीन, कि एसेट तो है अब मेरे पास कहीं पैसा नहीं, पर एसेट अलग है और पैसा अलग है। अब इस केस में क्या था बेटा, अब इस केस में मुझे कार खरीदनी थी, है ना, मुझे क्या खरीदनी थी, कार खरीदनी थी फॉर एग्जाम्पल। अभी मुझे वरना पसंद है, मैंने सेम ही एग्जाम्पल कोट करा है जिससे आप रिलेट कर पाए। मुझे वरना पसंद है, मैंने वरना लिख दिया। मेरे पास कौन से बैंक में खाता है, HDFC में खाता है। तो अब क्या हो रहा है, अब पैसा जो रुपीज है वो एक जगह से चल रहा है, कहाँ जा रहा है, दूसरी जगह जा रहा है सब कुछ मेरा है, कार भी मेरी, खाता भी मेरा, लेकिन दोनों कहाँ है, अलग अलग है। मुझे आपस में दोनों को लेकर आना है, तभी मैं वो पर्टिकुलर एसेट क्या कर पाऊंगी, ओन कर पाऊंगी। अभी मैं उसको ओन नहीं कर सकती, मैं शोरूम में पसंद तो कर आई हूँ पर मैं उसको ओन नहीं कर पा रही हूँ। तो अलग अलग है, उसको ओन करने के लिए मुझे सब कुछ एक साथ लाना पड़ेगा। तो उस केस में हम क्या ले जाते हैं, परचेज मनी लीन। क्लियर टू एवरीवन? अब हमने पांचों लीन पढ़ ली है, मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ आपको। जर्नल लीन, स्पेसिफिक लीन, परचेज मनी लीन, और दो आपको याद ही है, वॉलंटरी और नॉन वॉलंटरी। क्लियर टू एवरीवन? अब वो कह रहे हैं कि लीन में कंप्लीट हो गया। लीन किसका पार्ट था, लीन पार्ट था बेटा बेलमेंट और प्लेज का। अब ये कह रहे हैं कि जब आपने लीन भी कंप्लीट कर लिया है तो अब बताइए कि बेलमेंट और प्लेज में क्या डिफरेंस है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बिना पेपर नहीं होता। नाउ यू शुड अगेन रिवाइज इट वेरी केयरफुली। आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द सेम टॉपिक अगेन। हमने एक बार कवर कर लिया है, हमने इसको लीन में भी समझ लिया है, अब हम इसको सेपरेटली भी पढ़ रहे हैं, बिकॉज इट कुड बी द पॉसिबिलिटी कि आपको शॉर्ट में भी ये मिल जाए। तो ये 2 मार्क्स के अगर क्वेश्चन हुए तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन जरूर आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज। ठीक है, तो बेलमेंट हमने पढ़ा था सेक्शन 148 से 171 के बीच में। जब बेलमेंट खत्म हो जाता है बेटा तो सेम में ही सेक्शन 172 181 तक क्या चलता है, प्लेज। ठीक है, तो हम हमेशा बेलमेंट पढ़ते हैं पहले और फिर उसका एक्सटर्नल पार्ट पढ़ते हैं, दैट इज प्लेज। अब वो क्या कह रहा है कि बेलमेंट का मतलब क्या था कि जिसमें कुछ चीज डिलीवरी हो गई। बेलमेंट में मैंने आपको हमेशा पढ़ाया है कि गुड्स आर बीइंग डिलीवर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। और मैंने उस दिन ये एग्जांपल भी लिया था, क्या मुझ पे चलेगा बेलमेंट? नहीं, मुझ पे नहीं चलेगा ना। आई एम नॉट द गुड्स, आई एम नॉट द प्रॉपर्टी, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई कैन नॉट बी डिलीवर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो जैसे लीन में एसेट्स का होना जरूरी है, ऐसे ही बेलमेंट में क्या होना जरूरी है, जल्दी से सोच के बताइए। बेलमेंट में जो चीज बहुत जरूरी है दैट इज द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। ठीक है, और उसमें क्या है, उसमें प्लेज ऑफ द गुड्स है। उसमें क्या है, उसमें प्लेज ऑफ द गुड्स है। प्लेज ऑफ द गुड्स का मतलब है परफॉर्मेंस ऑफ द ऑब्लिगेशन। ठीक है, ऑब्लिगेशन या परफॉर्मेंस और मोर और लेस हम सेम जगह यूज कर सकते हैं। बस ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि मैंने अपनी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे से निभाया। मैं फर्स्ट आया इस तरह से, मैं सेकंड आई, हमने वॉलीबॉल टीम में जीत लिया, मैंने स्विमिंग आज बहुत अच्छी करी, मैं स्कूल की तरफ से कहीं गया था और मैंने वहाँ बहुत अच्छा खेला, मैं अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं अपने नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना। या आज मैंने बहुत बेहतर खाना बनाया, मेरे घर में बहुत लोग आने वाले थे, मैंने बहुत अच्छा खाना बना के सबको खिलाया, आज मैंने कंप्यूटर का ये प्रोग्राम चला लिया, आज मैंने ये ऐप बना ली। तो जब हम इस तरह की प्राउडफुल बातें करते हैं यार मैंने ये काम कर दिखाया और इसमें कोई गलती नहीं है, टाइम के साथ ही कर लिया है, कोई एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं लगा है, तो उस सब केसेस में हम किसकी बात ले जाते हैं, बात ले जाते हैं प्लेज। क्लियर? ठीक है, फिर वो क्या कह रहे हैं, डिलीवरी ऑफ द गुड्स फ्रॉम बेलर टू दी पेयर। ऐसे प्लेज में कौन से दो लोग हैं बेटा, प्लेजर एंड दी प्लेजर। उसमें कौन से दो लोग हैं, प्लेजर एंड दी प्लेजर। फिर वो क्या कह रहे हैं,
नेक्स्ट एग्जांपल में कि सैम ने क्या डिलीवर करा है, सैम ने कुछ गुड्स डिलीवर करे। कौन से गुड्स हैं, क्लियर कर लेते हैं, क्लोथ्स। ठीक है, क्यों दिया है उसने, क्योंकि वो चाहता है कि वो उसके लिए क्या बनाए, टी शर्ट बनाए। ठीक है, तो अब उसमें टी शर्ट बनाने के लिए उसने अपना जो कपड़ा है किसको दिया है, दूसरे को। दूसरा कौन है इसमें, टेलर है। ठीक, उसके केसेस में क्या है कि उसने कुछ बैंक से लोन लिया है और वो कह रहा है कि लोन मैं जब तक वापस नहीं कर पाऊंगा तो मैं अपना प्रॉमिस फुलफिल करूंगा, इसके लिए आप प्लीज ये 4 सोने की चूड़ियां रख लीजिए। यू कैन टेक माय बैंगल्स और यू कैन मॉर्गेज माय बैंगल्स एंड आई जस्ट वांट a 50 lakh rupees of loan and I will fulfill this loan amount within 2 years or 3 years or 5 years, whatever your time period is. Okay? तो ये डिफरेंस है बेटा दोनों में। बेलमेंट में हमेशा डिलीवरी ऑफ गुड्स की बात और प्लेज में हमेशा परफॉर्मेंस की बात। प्लेज में हमेशा ये जिक्र करा जाता है कि मैं इसको कर दूंगा, मैं इसको करने लायक हूँ, मुझ पे डाउट मत रखिए, मुझ पे भरोसा करिए, मैं इस परफॉर्मेंस को अच्छे से, समय से और पूरी तरीके से फुलफिल कर दूंगा। तो जब हम इस तरह की बात करते हैं कि जिसमें कोई इंसान है, हमें उस पर भरोसा करना है, तो हम किस में चले जाते हैं, हम प्लेज पे चले जाते हैं। ठीक है, और जब हम सिर्फ गुड्स को डिलीवर कर रहे हैं और हम ये चीज़ों की बातें कर रहे हैं कि गुड्स को कैसे रखना चाहिए, अच्छे से रखना चाहिए, बिना खराब किए रखना चाहिए, गुड्स को अच्छे से यूज़ करना चाहिए, गुड्स को कभी दूसरे गुड्स के साथ मिलाना नहीं चाहिए, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, तब हम बेलमेंट की बात कर रहे हैं, है ना। तो हमेशा पहले बेटा हम लोग इसीलिए बेलमेंट पढ़ते हैं और फिर बेलमेंट का ही एक्सटेंशन पार्ट क्या पढ़ते हैं, प्लेज। जबकि प्लेज ज़्यादा बड़ी बात होती है क्योंकि प्लेज में इंसान के व्यक्तित्व पे भी बात आती है। जैसे आप लोन लेने जाते हैं ना तो आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है। अब ये बेलमेंट का टॉपिक है या प्लेज का, जल्दी से सोच के बताइए। सब बच्चे अपनी कॉपी में जल्दी से लिखें बेलमेंट और प्लेज। आई विल काउंट टिल 5, फिर देखते हैं कि आप लोगों ने सही लिखा है या गलत लिखा है। 1 2 3 4 5। द आंसर इज प्लेज। ये प्लेज का टॉपिक है क्योंकि किसकी बात हो रही है, परफॉर्मेंस की, व्यक्तित्व की, ऑब्लिगेशन की, कि मैं करके दिखाऊंगा, मैं लोन लूंगा तो उसको वापस भी करूंगा, गुड्स ट्रांसफर नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मेरी गाड़ी ले जाओ और इससे एक व्यक्ति को दिल्ली छोड़ाओ, अब ये किसका एग्जाम्पल है, बेलमेंट या प्लेज। फिर से सोच के लिखिए, आई विल काउंट टिल 1 2 3 4 5। ये एग्जाम्पल है बेलमेंट का क्योंकि इसमें गाड़ी है, इंसान है, उसे छोड़कर आना है, डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो अगर आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। दैट इज नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट टॉपिक। हम जब बात करते हैं तभी हमें आइडिया लगा सकते हैं कि ये बेलमेंट का टॉपिक है या फिर ये प्लेज का टॉपिक है। ठीक, आप ये कह रहे हैं कि इसके पास कोई राइट्स नहीं होता, आप मेरी गाड़ी दिल्ली ले तो जा रहे हैं लेकिन आप उसको बेच नहीं सकते। मैंने आपको सिर्फ अपनी गाड़ी इसलिए दी है कि आप इस गाड़ी से इस व्यक्ति को दिल्ली तक छोड़ाएं। लेकिन प्लेज में जैसे वो 4 चूड़ियों का मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि तुम 4 चूड़ियां रखो और मुझे इतना पैसा दे दो, मैं 3 साल में ये पैसा वापस करूंगा। अब अगर आपकी परफॉर्मेंस पूरी नहीं हुई तो सामने वाले व्यक्ति के पास ये राइट है या नहीं है कि वो 4 चूड़ियां आपकी बेच। आपने एक एग्जाम्पल सुना है मारुति ट्रू वैल्यू, है ना, सभी बच्चों ने सुना होगा। मारुति ट्रू वैल्यू कैसे बन गया, जो गाड़ियां आप दे देते हैं या जो गाड़ियों का लोन नहीं पूरा हो पाता सब कहाँ चली जाती है, मारुति ट्रू वैल्यू में चली जाती है कि नहीं। तो इस तरह से क्या होता है कि बेलमेंट और प्लेज को हम बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न पे देख भी सकते हैं। ठीक है, पढ़ते हम एक साथ हैं, एक ही यूनिट में पढ़ते हैं क्योंकि एक ही का एक्सटेंशन टॉपिक है। 171 से लेकर 182 तक यही टॉपिक चलता है। लेकिन अगर हम दिमाग में सोचें तो बिल्कुल 2 अलग अलग चीजें हैं। एक में व्यक्तित्व भी आता है और एक में सिर्फ डिलीवरी ऑफ गुड्स आता है। ठीक है, फिर वो क्या कहता है कि हम उसमें लीन का यूज कर सकते हैं। टेलर कैन यूज द राइट ऑफ द लीन, और उसमें क्या है, प्लेज कैन एक्सरसाइज अ लीन फॉर ओनली द नॉन पेमेंट ऑफ द। प्लेज में हम सिर्फ तभी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमने पेमेंट अच्छे से ना। क्लियर टू एवरीवन?
I thought this topic is almost clear to everyone. Now coming to the full-fledged next topic, that is termination of the bailment. देखिए बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं बेटा जिसमें हमको ये समझ में आता है कि हम चीजों को तोड़ रहे हैं या खत्म कर रहे हैं, है ना। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिए कि हर शब्द का मीनिंग अलग अलग है। टर्मिनेशन का मतलब होता है कि चीज समय से भी तो खत्म हो सकती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि सेशन एक्सपायर हो गया, जैसे मान लीजिए आपने फ्रिज खरीदा, अब उसे 5 साल हो गए, अब वो गारंटी वारंटी में नहीं है। आपने मैट्रेस खरीदी, मतलब आपने गद्दे खरीदे, 3 साल उनकी गारंटी वारंटी थी, अब वो गारंटी वारंटी में नहीं है ना। तो समय से भी तो हो सकता है टर्मिनेशन। लेकिन जब बेटू मैं कहती हूँ ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, देखो खत्म तो उसमें भी हो रहा है, लेकिन ब्रीच का मतलब होता है कि हम में से एक ने कोई ऐसी गलती करी जिसके चलते चीजें क्या हो गई हैं, ब्रीच हो गई, खत्म हो गई। तो ये ध्यान रखिए कि टर्मिनेशन में ब्रीच भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया है, ये अपनी जगह जेन्युइन बात है। हो सकता है कि इसमें एक ये फैक्ट इंक्लूडेड है। कौन सा फैक्ट? ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? नाउ दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो termination of the bailment occurs when a purpose for which the property was transferred to bailor or the bailee has been fulfilled. Has been fulfilled। देखिए satisfactory definition है, definition खुद में बहुत अच्छी है। वो क्या कह रहा है कि ये चीज खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि दो लोगों के बीच में जो एक बातचीत हुई थी, जो एक सामान एक जगह से दूसरी जगह गया था, वो ऑब्लिगेशन क्या है, अब पूरी तरह से समाप्त है। तो दिल्ली वाले केस में आपने गाड़ी ली, मेरे दोस्त को दिल्ली छोड़ा और रात में गाड़ी लाके मेरे घर पे खड़ी कर दी, खत्म हो गया बेलमेंट। कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, ठीक। जहाँ पे एक या दूसरी पार्टी खुद ही मैच्योरली डिसीजन ले ले कि मेरी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो गया है। तो दिल्ली वाले केस में जो मेरा फ्रेंड था उसने ये डिसीजन लिया और आपने गाड़ी मेरे घर लाके छोड़ दी, कॉन्ट्रैक्ट अपने आप ही क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया। हमेशा ये ध्यान रखिए कि हम जितनी चीजें भी लॉ में पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम चीजें 99% बेटा सेटिस्फैक्टरी ही रहती है। कितनी बार आपके साथ ये घटना हुई है कि आपका बैग चोरी हो गया, आप खुद बताइए, लाइफ टाइम में 1 या 2 बार, अगर आप सतर्क रहते हैं, है ना। अदरवाइज किसी के जीवन में कभी भी नहीं होता। ये सब चीजें तब इस्तेमाल में आती हैं बेटा जब हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, समथिंग मिस हैपेंड टू अस। कि जैसे वो मेरा दोस्त तो था, मैं उसे जानती तो थी, मैंने उसे अपनी गाड़ी भी दी, उसने मेरे दोस्त को छोड़ भी दिया, उसका फोन भी आ गया कि हाय अंशु थैंक यू सो मच, मैं तो अपने घर पहुंच चुका हूँ। लेकिन वो व्यक्ति रात में मेरे घर वापस नहीं आया। वो मेरी गाड़ी का मिसयूज कर रहा था, वो मेरी गाड़ी से जगह जगह दूसरे लोगों को घुमा रहा था और उनसे पैसे ले रहा था। वो उसका टैक्सी की तरह यूज कर रहा था। मेरी गाड़ी तो क्या थी, पर्सनल थी, प्रोफेशनल तो थी नहीं, लेकिन उसने मेरी गाड़ी का क्या करा, मिसयूज करा, उसको एज ए टैक्सी चलाया एक दिन, ठीक है। तो ये सब दिक्कतें कब आती हैं बेटा? मैं आपको ये सब चीजें क्यों पढ़ा रही हूँ? मैं लाइफ में आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ कि आपको ये चीज ध्यान रहे कि जब दिक्कत आएगी तब हमको दूसरे के राइट्स भी पता होने चाहिए कि वो मेरे खिलाफ क्या क्या एक्शन ले सकता है। या फिर जब मुझ पे बेटा दिक्कत आए, मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाएगी, तो मुझे भी अपने राइट्स पता होने चाहिए कि अरे मेरे पास इतने राइट्स हैं, सरकार ने मेरे लिए इतने राइट्स बना रखे हैं, मैं उन राइट्स का यूज करूं और यूज करके अपनी चीज अपने पास वापस ले सकता हूं। कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन लाइफ में जब कभी भी आपको लगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट्स पे जाइए, देखिए और सर्च करिए, आपके हित के लिए हर तरीके का काम है। हाँ, साइट्स पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं बेटा कि आपको लगेगा कि ये बहुत टाइम ले रही है, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। मैं अपने बच्चों को जिनको क्लास में पढ़ाती हूँ हमेशा एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का फॉर्म कहती हूँ, खोलिए मेरे सामने और भरिए। ऑलमोस्ट बेटा 1 घंटे की क्लास में देयर इज नो वन हु कैन फुलफिल दैट फॉर्म, पॉसिबल नहीं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का फॉर्म आज आप लोग भर के देखिएगा, दैट इज माय होमवर्क गिवन टू यू, ठीक। एंड टाइमर सेट करिएगा
30 minutes, 15 minutes, 20 minutes and just watch that whether you can able to fill that form within the particular time or not. फॉर्म बहुत लंबे हैं बेटा, इसलिए इंसान क्या सोचता है यार लेट छोड़ आगे चलो। देखिए पोर्टल्स हैं, सुविधाएं हैं, सॉल्यूशन लेट है, ठीक है, इसलिए हम लोग लेट गो कर देते हैं। बिल्कुल लेट गो मत करिए, समय लगाइए, फॉर्म भरिए, पोर्टल पे रजिस्टर करिए, एक बार आपको आपका नंबर मिल जाए, कंप्लेन नंबर। नाउ यू कैन गो विद दैट कंप्लेन नंबर टू द वेरियस ऑफिसेस। आपने वो काम कर दिया जो आपके एंड से होना है, ठीक है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि फुलफिलमेंट हो सकता है बहुत आराम से, कि पर्पस ही फुलफिल हो गया, टाइम खत्म हो गया, म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया कि अरे यार हम मुझसे भी ये काम नहीं हो रहा और तुमसे भी ये काम नहीं हो रहा, चलो ऐसा करो, छोड़ो, नहीं हो रहा, दोनों से ही नहीं हो रहा, छोड़ो। आप टर्मिनेट नहीं हुआ बेटा, इसमें टर्मिनेट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम में से एक ने दगा नहीं करा, हमने म्यूचुअली ये सोचा है तुमसे भी नहीं हो रहा और मुझसे भी नहीं हो रहा, चलो छोड़ो। जैसे कि बिजनेस, हमने कहा कि बारिश आने वाली है, इट्स गोइंग टू बी अ रेनी सीजन, चलो अम्ब्रेला बना देंगे फैक्ट्री में, पैसे भी नहीं लगेंगे और बेच भी लेंगे, अपना खुद ही मार्केटिंग करेंगे। लेकिन धीरे 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 आपको लगा कि बहुत कॉस्ट लग रही है, बहुत लेबर लग रहा है, अब क्या करें? तो इन दैट केस फिर क्या हुआ? टर्मिनेट करो, ठीक है, खत्म करो। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट से रेवोकेशन, रेवोकेशन का मतलब है कि जहाँ पे एक ने रेवोक कर लिया है उसको हम क्या कहते हैं? रेवोकेशन, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इसमें दोनों पार्टीज इन्वॉल्व हो, किसी एक पार्टी से भी रेवोकेट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, तो दैट पर्टिकुलर टर्म इज नोन एज रेवोकेशन, ठीक है। एडॉर्नमेंट, जहाँ पे एक का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए या एक उस प्रॉपर्टी से अब कोई काम कर ही ना पा रहा, ठीक। फिर ब्रीच, मैंने ये सेम चीज आपसे बोली थी कि टर्मिनेशन में हमेशा एक कॉन्सेप्ट आता है ब्रीच, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो इसमें किसका ब्रीच है बेटा? बेली का, क्योंकि बेली वो व्यक्ति है जिसे परफॉर्मेंस करनी है, अब वो नहीं कर पा रहा, समय निकल गया है या वो कहीं और चला गया। तो जब हम इस तरह से बात करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जितनी बार भी हम ये टॉपिक पढ़ते हैं, ब्रीच हमेशा इसमें इन्वॉल्व होता ही है, ठीक है। अब कुछ हमारे कीवर्ड्स, बेलमेंट, अब हमने अच्छे से रिवाइज कर लिया। बेलमेंट क्या है? बेलमेंट दो लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे एक का सामान दूसरे के पास जा रहा है। इसमें दो तरह के व्यक्ति हैं, बेलर एंड द बेली, इनकी कुछ ड्यूटीज और इनके कुछ राइट्स, क्लियर। द नेक्स्ट इज बेलर कौन है? who deliver the goods, बेली कौन है? who receive the goods। pledge, जहाँ पे हम प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लेजर जिसके पास जा रही है, लीन राइट को कहते हैं, ठीक। अब आ जाती है बारी सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। अब सेल्फ असेसमेंट करना है आपको। आप प्लीज अभी आंसर मत देखिएगा, आंसर आप बाद में देखिएगा, वैसे तो दिख रहा है लेकिन पहले कोशिश करिए कि आप इसको खुद से करिए, ठीक है ना। मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, एक बार आपको समझा भी देती हूँ, ठीक है। जो सहारा है उसने अपने फ्रेंड से कहा कि यार तुम होल्ड करो बाइसिकल और मैं छुट्टियों पे जा रही हूँ, ठीक है। अब उसने मार्क को बाइसिकल आगे लैंड कर दी और उसने उस बंदी को बताया भी नहीं, उससे परमिशन भी नहीं ली, ठीक। तो आप ये बताइए कि जो भी डैमेज होगा बाइसिकल में या जो भी एक्सीडेंटल कॉस्ट आती है तो कौन पे करेगा? पहले तो ये समझ लेते हैं बेटा कि ये केस है बेलमेंट का। क्यों? क्योंकि गुड्स है, दो व्यक्ति हैं, एक ने एक चीज दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करी, ठीक। अब अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो पहली बात तो ये है कि जो बंदा है मार्क, इसने बिना परमिशन के नेबर्स को बाइसिकल, इसमें नेबर बिल्कुल गलत है, नेबर तो गलत है ही नहीं, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि मार्क ने परमिशन ली है या नहीं ली है। इसमें सारी गलती इसकी है, ये गलत है, इसको रेड कर दी, जिससे कि आप लोगों को भी याद हो कि रेड इज अ कलर ऑफ एंगरनेस। इसमें सब गलती इसकी, इसने उससे तो ले लिया लेकिन इसने आगे बिना किसी को बताए क्या करा है? ट्रांसफर कर। इसमें कौन इनोसेंट है? इसमें जिस बच्चे ने ट्रस्ट करा बेटा वो इनोसेंट है, उसकी भी कोई गलती नहीं, ठीक है।
अब आप देखिए मैंने तीनों कलर्स कर दिए, तो येलो वाले को तो बेचारे को कुछ पता ही नहीं कि उसके साथ ऐसी घटना हो चुकी है। ग्रीन वाले की बस थोड़ी सी ये फॉल्ट है कि वो पूछ सकता था कि भाई ये तुम्हारी है या किसी और की है। उसने बस यहाँ लिखा नहीं है और उसके हिसाब से हमें ये समझ में आ रहा है कि उसने सोचा भी नहीं कि मैं पूछ लूं कि बाइसिकल ये मुझे अपनी दे रहा है या किसी और भी दे रहा है। मार्क की पूरी गलती, ठीक है। इसीलिए जितने भी डैमेज होंगे कौन पे करेगा बेटा? मार्क। तो अब आप लोग ने आंसर अगर आप पढ़ रहे हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि जितना भी डैमेज होगा कौन भरेगा? मार्क भरेगा। मार्क इज लायबल टू पे द फुल अमाउंट ऑफ डैमेज। कोई और व्यक्ति इसमें डैमेज पे नहीं करेगा, ठीक। अब दूसरा केस आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है? लोन है, व्यक्ति है। अगर लोन है, व्यक्ति है तो ऑब्लिगेशन है बेटा, परफॉर्मेंस है कि मैं लोन चुका दूंगा, मैं लोन चुका दूंगा, ये क्या है? मेरी परफॉर्मेंस है। तो इन दैट केस मुझे लोन को क्या करना है? रीपे करना है, मेरी क्रेडिट लिमिट बननी है। तो ये बेलमेंट का एग्जांपल है या प्लेज का एग्जांपल है? प्लेज का एग्जांपल है। अब इतने टाइम बाद तो आप लोगों को क्लियर ही हो गया है किसका एग्जांपल है? प्लेज का एग्जांपल है। अब वो क्या कह रहा है कि वो बाद में रिफ्यूज कर देता है कि वो लीन नहीं करेगा जॉन के ऑफिस के इक्विपमेंट्स, ठीक। अब हमें क्या देखना है? जॉन प्लेजर है और बैंक प्लेजी है, मतलब एक ने लोन लिया है और एक ने लोन रिसीव करा है। अब जॉन ने ऑफिस इक्विपमेंट्स के लिए लोन लिया था जो कि सिक्योर लोन था और उसने ये भी कहा था कि वो उस लोन को वापस कर देगा, लेकिन वो लोन वापस करने में सक्षम नहीं था, ठीक। अब बैंक का इंटरेस्ट क्या है? बैंक का इंटरेस्ट तो ये था कि भाई ऑफिस में काम हो जाएगा, ऑफिस का काम चल जाएगा और हमें हमारा पैसा भी वापस मिल जाएगा। लेकिन जब उसने रिफ्यूज कर दिया तो वो जॉन को ही पकड़ेंगे, क्योंकि कागजी कार्रवाई सब किसके नाम से है? जॉन के नाम से। उसका इंटरेस्ट सही था, उसका मुद्दा भी सही था, लेकिन उससे परफॉर्मेंस अच्छे से पूरी नहीं हो पाई, ठीक है। तो इस केस में हम ये मानेंगे कि उसने अपनी ड्यूटी को अच्छे से फुलफिल नहीं करा है और ये ब्रीच का केस बन जाएगा, क्लियर, ठीक। थर्ड आ जाते हैं। एमिली ने क्या हायर करा है? एक कॉन्ट्रैक्टर कि वो रिनोवेट करेगा उसका किचन, जैसा वो चाहती है बिल्कुल वैसा ही। लेकिन बाद में क्या होता है कि वो बिल्कुल वैसा तो नहीं हो पाता है। अब ये एग्जांपल है बेटू लीन का। क्यों एग्जांपल है लीन का? देखिए बेलमेंट तो नहीं हो सकता। बेलमेंट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, प्लेज भी नहीं हो सकता क्योंकि ना लोन है, ना परफॉर्मेंस है, ना कुछ नहीं। ये सीधे एग्जांपल किसका है? लीन का, राइट का, जहां पे मैंने अपनी मर्जी से कहा है कि हाँ मुझे ये पैसे दो और जैसी तुम्हारी इच्छा है बिल्कुल वैसा ही मैं किचन बना के वापस करूंगी। तो ये किसका एग्जांपल है? लीन का एग्जांपल, ठीक है। अब उसे लगा कि ये वैसा तो नहीं है जैसा मुझे चाहिए था। किसे लगा? एमिली को लगा। तो भाई एमिली क्या कहेगी कि मेरा पैसा वापस करो और मेरी प्रॉपर्टी में तुमने ये जो भी गलत सलत काम करा है इसे ठीक करके मुझे वापस दो। अच्छा, these are the few websites and the books. Although this much material is sufficient for you, but in the case if you feel कि मुझे extra पढ़ना है तो there are few books and these are the sites, ठीक है। आपको मैं और भी अच्छी बुक्स बताती हूँ। तुलसियान, पीसी तुलसियान, एमसी कुच्चर। इफ यू फाइंड कि आप फॉरेन ऑथर्स की बुक्स पढ़ने में अभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, यू फाइंड कि मुझे इनकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो अभी बहुत अच्छी साउंड नहीं कर रही हैं, आई एम नॉट एबल टू गेट इनटू दिस, आप इंडियन ऑथर्स की पढ़िए। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू गो फॉर द फॉरेन ऑथर्स। इंडियन ऑथर्स की बहुत अच्छी, ठीक है, कुच्चर है, तुलसियान, और दोनों ही मर्चेंटाइल लॉ की है। एक बिजनेस लॉ की, एक मर्चेंटाइल लॉ की है। आपको पूरा का पूरा आपको सिलेबस अच्छे से मिल सकता है, उसमें केसेस भी मिल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस एक साइट हमेशा बेटा आप नोट कर लीजिए, indianqanun.com। तो जो indianqanun.com एक वेबसाइट है, उसमें ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर है। हम भी जितने केसेस में आपके लाती हूँ ये उसी से लाती हूँ, ये एक्चुअल केसेस हैं जो होते हैं। तो जितने भी केसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड चलते हैं, indianqanun.com एक वेबसाइट है, उस पर सारे केसेस अपलोड किए
जाते हैं ना एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। मान लीजिए 500 पन्ने की फाइल है, तो वहां आपको 150 शब्दों में वो केस मिल जाएगा और उस केस को आइडेंटिफाई करें, वहां से आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। इन दैट प्रोसेस व्हेनेवर यू फील कि ये केस मुझसे नहीं हो रहा, जस्ट शेयर मी द लिंक। My WhatsApp number is 9720000834. I am writing my WhatsApp number so that in case जितने बच्चों का छूट जाता है, sometime you people call me and said कि मैम मेरा तो नंबर छूट गया है और आप प्लीज दोबारा से रिफ्रेम कर दीजिए, तो मैं आपको देखिए प्लीज यहाँ अपना नंबर नोट डाउन भी कर दे रही हूँ, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। WhatsApp नंबर है मेरा, उस पे आप मुझे WhatsApp लिंक शेयर करिए and surely I am going to discuss the particular case in my next class। और आप मेरी मेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं। You can send me the link or you can send me the full article, whatever your wishes, है ना। आप प्लीज बस mention the topic number 4 or we can say the block number 4 that is known as agency। Now what is agency? हम बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझते हैं कि एजेंसी क्या है। एजेंसी हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे होती है, जो कि किसी और की होती है जनरली। फॉर एन एग्जांपल हमने कहा कि हम एजेंसी ले रहे हैं स्प्लेंडर, तो अब बाइक तो है स्प्लेंडर की, एजेंसी ली यहाँ मिस्टर सुरेश, तो मिस्टर सुरेश कौन होंगे? ही इज द प्रिंसिपल ऑफ दैट एजेंसी। कौन होंगे? ही इज द प्रिंसिपल ऑफ दैट एजेंसी। ओके, लेकिन जो एजेंसी का मालिक है वो कौन होगा? जो स्प्लेंडर का मालिक है, जो हीरो होंडा का मालिक है। ठीक है, तो हम एजेंसी लेते हैं। एजेंसी कौन सी हो सकती है? किसी कंपनी की हो सकती है, किसी व्यक्ति के काम की हो सकती है, किसी सर्विस की हो सकती है। आपने अपोलो हॉस्पिटल की ले रखी है, आपने पैथलैब की ले रखी है, आपने मैकडी की ले रखी है, आपने नायका की ले रखी है, आपने बाटा की ले रखी है, आपने एक्शन की ले रखी है। अब कंपनी का मालिक नहीं चेंज हो रहा है बेटा। फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करें कि मैंने शुगर की एजेंसी ले रखी है, इन द केस कि मैंने किसकी एजेंसी ले रखी है? मैंने शुगर की एजेंसी ले रखी है। ठीक है, तो शुगर जो कंपनी है ये विनीता जी और उनके हस्बैंड ने बेटा मिलकर चलाई, लेकिन हम यहाँ मुरादाबाद में शुगर की एजेंसी लेना चाहते हैं। मेरा नाम है अंशु, मैंने वो एजेंसी ली, ठीक। तो अब मैं विनीता नहीं, लेकिन जो उन्होंने कंपनी में सामान बेचा है या जिस प्राइस पे बेचा है, मैं सेम चीजें वहां से खरीद रही हूँ और अपने यहाँ लाके बेच रही हूँ। अब जो अंशु है और जो शुगर है, तो अंशु कौन है बेटा? उसमें अंशु प्रिंसिपल है, क्योंकि किसके नाम पे है एजेंसी? मेरे नाम पे। अब हो सकता है कि मेरा बेटा बैठे, तो वो क्या होगा? मैं नहीं बैठ पाता, मैं थक जाती हूँ, मैं क्लास में पढ़ाती हूँ, घर चली जाती हूँ, पूरा दिन बिजनेस मेरा बेटा देखता है, तो ही इज द सब प्रिंसिपल। कौन होगा? लेकिन जिसके नाम पे है, प्रिंसिपल नहीं। जनरली आपके फादर आपकी मदर के नाम पे ले लेते हैं, पर पूरा बिजनेस, पूरा का पूरा बिजनेस कौन देखता है? फादर देखते हैं। अब एक वेब सीरीज आई है पंचायत में यही सिखाया गया कि जो बेसिक प्रधान है वो लेडी है, और जो चला रहे हैं विलेज वो कौन है? प्रधानपति है। तो इसमें प्रिंसिपल कौन है बेटा? जो लेडी है, जो बेसिक प्रधान है, और प्रधानपति कौन है? उनके सब प्रिंसिपल है ना। अच्छा, अब एजेंसी में एजेंट होता है। एजेंट सब एजेंट भी रख सकता है। एजेंसी में और कौन होता है? एजेंट। एजेंट वो व्यक्ति होता है जो एजेंसी के बिहाफ पे काम करता है। अगर प्रिंसिपल नहीं है, in the absence of the principal, agent has a whole sole authority. In the absence of the principal, agent has whole sole authority. एजेंट ही पूरी की पूरी अथॉरिटी मेंटेन करेगा।
क्लियर टू एवरीवन? नाउ इन दिस केस अगर एजेंट भी होना, अगर मान लीजिए बेटा सब एजेंट, अब डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इन दी एब्सेंस ऑफ द एजेंट, आप प्रिंसिपल की बात नहीं करें, एजेंट की जगह सब एजेंट है ना, तो इन द एब्सेंस ऑफ द एजेंट, सब एजेंट हैज, कौन सी अथॉरिटी? होल्सो ने हैज एजेंट राइट्स। अथॉरिटी तो इसे कभी मिल ही नहीं सकती, इसे सिर्फ क्या मिल सकते हैं बेटा? राइट्स। ठीक है, तो अब एजेंसी, एजेंसी क्या होती है? एजेंसी बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन होती है, या कोई कंपनी का फॉर्म हो गया, या फिर एक ऑफिस हो गया, तो एजेंसी कुड बी एन इंस्टीट्यूशन। क्लियर? अब इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज सिंपली नोन एज एजेंसी एग्रीमेंट। इट्स अ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज। कौन सी दो पार्टीज है बेटा? प्रिंसिपल एंड द एजेंट। कौन सी दो पार्टीज हैं? प्रिंसिपल एंड द एजेंट। राइट? ओके, एक एग्रीमेंट है दो लोगों के बीच में कि मैं जब उठ के यहाँ से चला जाऊंगा तो तुम मेरे बिहाफ पे ये सारा काम देखो। क्लियर? In this contract, principal grants authority. Principal क्या कर रहा है? अथॉरिटी को ग्रांट कर रहा है। किसको दे रहा है बेटा? एजेंट को दे रहा है। इसीलिए मैं एजेंट को यहाँ ग्रीन कर रही हूँ। ठीक है, कि in my absence आप ही सारे डिसीजंस को देखेंगे। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि अंशु ने यहाँ पे मुरादाबाद में n नंबर ऑफ एजेंसीज ली। मैं फिर से अपना नाम लिख देती हूँ। अभी मैंने आपसे कहा कि मैंने नायका की एजेंसी ली, ठीक है, मैं आपसे कह रही हूँ कि अब मैंने हीरो होंडा की भी एजेंसी ली। फिर थोड़ी देर बाद मुझे याद आता है कि अरे हीरो होंडा और नायका तो दो मैंने ले ही ली है, चलो बीकानेर की भी ले ली जाए। ठीक है, तो मेरे पास 3 तरह की एजेंसी होगी। तो अब एज मी एज अ पर्सन कहाँ बैठेंगे? हम कहीं बैठ सकते हैं? नहीं। और हो सकता है कि मैं अपना बिजनेस देखने के लिए बहुत ट्रैवल करती हूँ। तो अब मैं प्रिंसिपल, मैं क्या हूँ इसमें? मैं इसमें प्रिंसिपल हूँ। ठीक है, तो अब जो प्रिंसिपल है उसके पास कितने एजेंट्स हैं? उसके पास देखिए बहुत सारे एजेंट्स हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या है? अंशु कौन है? प्रिंसिपल है, और उसके पास कितने एजेंट्स हैं? बेसिकली 3 एजेंट्स, जो कि 4, जो कि मेरी एब्सेंस में काम करेंगे। मेरी एब्सेंस में काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम ये बात ध्यान में रख सकते हैं कि एक ही व्यक्ति बहुत तरह की एजेंसी चला सकता है। अच्छा, अब आपके मन में एक बात है, पेट्रोल पंप में आपकी जमीन कहाँ होनी चाहिए ये फिक्स होगा। ठीक, 25 लाख रुपया, 50 लाख रुपया, जो भी आपको सरकार के इसमें रखना पड़ता है वो फिक्स होगा। तो इतना पैसा आप दे रहे हैं, आपकी लैंड यूज हो रही है, उसके बाद आप बेटा काम कर पाते हैं। तो अगर आप 3-4 एजेंसी चला रहे हैं तो कम से कम आपके पास 5 करोड़ रुपया तो कैश या लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप एजेंसी चला सकते हैं। अदरवाइज आप एजेंसी नहीं चला सकते, क्योंकि एजेंसी रन करने में भी कुछ टाइम लगता है। एजेंसी बनेगी, मार्केटिंग होगी। जैसे मैंने नायका का एग्जांपल दिया, कितने लोग हैं जो नायका का ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं या शुगर का ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं? बहुत कम लोग हैं, बिल्कुल जरूरी तो नहीं है ना? तो जो कम लोग, लिमिटेड लोग कस्टमर्स को लाने, क्लियर है? तो इसीलिए कस्टमर ओरिएंटेशन को लेने के लिए हमको धीरे धीरे एजेंसीज लगाना चाहिए। एक साथ ही इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपकी एक एजेंसी चल गई, कुछ सालों बाद दूसरी, कुछ सालों बाद तीसरी। ठीक, आप सेम फील्ड में भी जा सकते हैं।
जैसे मैंने नायका और शुगर का एग्जाम्पल लिया, तो आप तीसरी लैक्मे की भी ले सकते हो, आपने सेम फील्ड चुना। लेकिन ऐसे मैंने अगर आपके सामने एग्जाम्पल लिया हीरो होंडा का, तो आप मारुति भी ले सकते हो, है ना। कि हम सेम फील्ड में ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम उन्हीं लोगों से मिलेंगे, वैसे ही लोग हमारे साथ डील करेंगे, कस्टमर रिलेशन मोर और लेस सेम ही होगा। तो हम एक ही फील्ड में रहें तो दैट वुड बी मच बेटर एज कंपेयर टू मूविंग इनटू डिफरेंट फील्ड्स। बट देयर इज अ थ्योरी फॉर दिस। ये हमको हमेशा सिखाया जाता है कि डाइवर्सिफिकेशन reduces the risk। हम जितना डाइवर्सिफाई उतना हमारा रिस्क क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, है ना। तो दैट इज आल्सो डन। अब हम कैसे डाइवर्सिफिकेशन का एग्जांपल ले सकते हैं, हम घर का एग्जांपल लेके देखते हैं। हम अभी इस चीज में नहीं पढ़ते हैं कि हम कितनी मल्टीपल एजेंसी लगा सकते हैं, हम अभी घर की बात सोचते हैं कि जैसे पापा ने कुछ पैसा एफडी में लगा रखा, पापा ने कुछ म्यूचुअल फंड में लगा रखा, पापा ने कुछ शेयर्स भी खरीदे रखे, पापा ने कुछ गोल्ड भी ले रखा, पापा ने एक लैंड भी ले रखी। ठीक है, पापा शाम को एलआईसी के ऑफिस में एज अ सेल्स पर्सन भी काम करते हैं। ठीक है, एलआईसी ऑफिस में एज ए सेल्स पर्सन आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग ले लेते हैं। ठीक, पर मेरे पापा फुल टाइम मेरे पापा जो हैं वो बैंकर हैं। आप देखिए, अब इस व्यक्ति के पास कितना बड़ा पोर्टफोलियो कि वो ये भी कर रहा है, 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 ये भी कर रहा है। तो रिस्क क्या हो गया है, रिस्क बहुत रिड्यूस हो चुका है। अब इस तरह के व्यक्तियों का नुकसान बहुत कम हो। अगर मान लीजिए मार्केट डूबी है तो एफडी चलेगी, मार्केट में कहीं पैसा नहीं आ रहा तो जमीन में भी मान के चलिए कि इन्होंने कुछ एग्रीकल्चर लैंड ले रखी, फॉर एन एग्जाम्पल कि मैंने अपना घर बनवा रखा है और मैंने कुछ एग्रीकल्चर लैंड ले रखी, और इसके बाद मैंने एक शॉप भी ले रखी। डाइवर्सिफिकेशन, ये घर मेरा है, खेती मेरी है, और जिस दिन काम छोड़ूंगा मेरे पास अपनी शॉप है, मैं शॉप पे जाके बैठ जाऊंगा। अब अगर हम छोटा भी पैसा हर जगह लगा रहे हैं, हमने रिस्क को पूरी तरह से क्या कर रखा है बेटा, डाइवर्सिफाई कर रखा है। लेकिन इसमें मेहनत बहुत है। आपको भी लग रहा होगा कि पापा सोएंगे कब, अगर पापा इतना काम करेंगे तो पापा रेस्ट कब करेंगे। लेकिन जो बेटा बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो अपनी लाइफ को ऐसे ही चलाते हैं। ये मैंने आपको छोटा एग्जाम्पल दिया है, लेकिन अगर मैं आपको इसी का बड़ा एग्जाम्पल दूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि रिलायंस के पास अपना पावर कैपिटल भी है, अपना रिटेल भी है कि नहीं, उसके पास अपना प्रॉपर इंस्टीट्यूशन भी है, वो ऑनलाइन ऐप में भी काम कर रहा है कि नहीं, वो टेलीकॉम में भी है ना, वो हर जगह। तभी तो भी वो अंबानी ही से मिला। जबकि आप ये देखिए ब्रिटानिया बहुत पुरानी कंपनी है, पर ब्रिटानिया इतनी सक्सेसफुल क्यों नहीं है, क्योंकि वो एफएमसीजी में वो उससे ऊपर नहीं बढ़ रही। HUL हिंदुस्तान यूनियन लीवर तो फॉरेन की कंपनी है, नाम हमारा इस्तेमाल करती है, लेकिन क्या दिक्कत है उसके साथ, वो डाइवर्सिफाई नहीं है, वो वही काम कर रही है आज तक, वो और किसी काम में जा ही नहीं रही है। HUL क्या बनाती है, HUL सिर्फ और सिर्फ FMCG बनाती है। तो क्या FMCG गुड्स जिस दिन खत्म होंगे इनका क्या होगा, स्लो डाउन होगा। तो ये आगे चलेंगे या रिलायंस आगे चलेगा? सारे बच्चों को आंसर पता है कि मैम रिलायंस आगे चलेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास डाइवर्सिफिकेशन है ना। अब कुछ बच्चे कह सकते हैं कि मैम रिलायंस अच्छी तो है पर टाटा जितनी अच्छी नहीं है, हमको तो टाटा पसंद है। तो बेटा टाटा भी बहुत डाइवर्सिफाई है। टाटा देखिए, टाटा टेलीकॉम में भी, टाटा
टाटा कैपिटल में भी है। कैपिटल मीन्स आपके शेयर्स में, डिवेंचर्स में। टाटा फाइनेंस में भी है, टाटा फाइनेंस, इसके पास फाइनेंस की बहुत कंपनियां हैं टाटा के पास। टाटा ऑटोमोबाइल में भी है। तो टाटा ने खुद को कितना डाइवर्सिफाई कर रखा है। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑलवेज रिड्यूसेस द रिस्क, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन में टाइम और एफर्ट्स बेटा बहुत लगता है ना, इसीलिए लोग डाइवर्सिफिकेशन को धीरे 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 बढ़ाते हैं। इट टेक्स टाइम। ओके, नाउ अब इसमें क्या क्या प्रिंसिपल एलिमेंट्स, जस्ट वी आर हैविंग दिस मच ऑफ प्रिंसिपल थिंग्स जिनसे हमारा ये टॉपिक की हम शुरुआत कर सकते हैं कि प्रिंसिपल कौन है, हु इज द प्रिंसिपल। A principal is a party or the person who grants the authority to the agent. Principal वो व्यक्ति है जो एजेंट को ये अथॉरिटी देता है कि तुम हो व्यक्ति जो कि मेरी एब्सेंस में मेरे जैसा काम करोगे। तुम पैसे ले सकते हो, तुम शोरूम से गाड़ी बेच सकते हो, तुम सारे कागज इकट्ठा कर सकते हो, मैं ना हूं तो इनकम टैक्स वाले आ जाएं तो ऑफिस से खोल के ये फाइल दिखा सकते हो, तुम्हारी मोहर भी अगर होगी मेरे ऑफिस तक चल के आई तो मैं दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो एजेंट के पास ऑलमोस्ट प्रिंसिपल के सारे राइट्स होते हैं कि एजेंट खुद भी देखा जाए तो प्रिंसिपल की एक इमेज ही होता है। अगर एजेंट कोई गलती कर दे तो ये मान लिया जाता है कि प्रिंसिपल भी उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। मैं बिल्कुल रिसेंट टॉपिक लेती हूँ, एक पॉलिटिकल टॉपिक है, बहुत सारे जिलों के डीएम बदल दिए गए हर जगह न्यूज़पेपर। आप क्या कहेंगे, भाई उत्तर प्रदेश में बदले गए, बहुत जगह बदले गए, कि योगी जी ने बदला, उसमें मोदी जी की अनुमति नहीं होगी? गलत है। अगर कोई चीज योगी जी कर रहे हैं तो उसमें मोदी जी की अनुमति होगी ही होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इस टॉपिक को सोचें या मैं किसी के पार्टी के बिहाफ पे बात कर रही हूँ, कुछ भी नहीं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक, मैं ये डिस्कशन ही नहीं कर रही हूँ कि डिसीजन सही है या गलत है, मैं सिर्फ ये आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर प्रिंसिपल किसी को राइट देता है तो उसमें प्रिंसिपल की भी अनुमति होती है। आप आज कॉलेज में नहीं गए, आप बाहर घूम रहे थे, आपके एचओडी ने, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने आपका टर्मिनेशन लेटर निकाल दिया। आपको क्या लगता है कि प्रिंसिपल डोंट नो द राइट्स एंड द ड्यूटीज ऑफ द एचओडीज? गलत, उन्हें पता है एचओडी आज ही काम कर रहा है। In the absence of principal, HOD has a full right to terminate you. अगर आप कोई violence या indiscipline activity करते हैं तो इसीलिए प्रिंसिपल कंपनी का वो व्यक्ति होता है जिसके पास राइट्स होते हैं। अब वो एक भी हो सकता है, वो एक से ज्यादा भी हो सकता है। मान लीजिए कि कंपनी फैमिली कंपनी, तो इट कुड नॉट बी अ वन पर्सन, इट शुड बी द नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, सबके वोटिंग से बने प्रिंसिपल है। बहुत सारे ऐसे जॉइंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहां पे दो लोग पार्टनर होते हैं, दे आर द इक्वल पार्टनर्स, 50-50 है, जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा है, तो इट कुड बी मोर देन 2 पार्टनर्स। ठीक, अब कंपनी हो सकता है, लीगल एंटिटी हो सकता है, और कोई और भी व्यक्ति हो सकता है जो इस कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहे वो। अब जैसे रिलायंस है, रिलायंस इज एन एग्जांपल ऑफ n नंबर ऑफ प्रिंसिपल। रिलायंस में कोई एक प्रिंसिपल है नहीं, कुछ उनकी वाइफ के नाम पे हैं, कुछ खुद उनके नाम पे हैं, कुछ बेटे के नाम पे हैं, कुछ डॉटर के नाम पे हैं, अलग अलग लोगों के नाम पे हैं, तो सभी प्रिंसिपल है ना? क्लियर? तो इस तरह से हम ये बात बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल एक ही व्यक्ति हो सकता है, कि एक ही संस्था में एक से ज्यादा प्रिंसिपल भी अवेलेबल हो ना। एजेंट, तो एजेंट वो बंदा है जो कि प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा है। जैसे हमने इसमें एग्जांपल लिया था प्रिंसिपल और एचओडी का, तो इसमें एचओडी कौन है? एचओडी इज द एजेंट। ठीक, या आप किसी कंपनी में जाते हैं तो जो आपको मैनेजर मिलता है ना, जरूरी नहीं है कि मैनेजर मालिक हो, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप कहते हैं ना मैनेजर को बुला लेंगे, मैनेजर मालिक नहीं है, मैनेजर इज द एजेंट ऑफ दैट कंपनी। ठीक है, वो उसके बिहाफ
बिहाफ पे सिर्फ काम कर रहा है। अच्छा, अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी लिमिटलेस होती है। अथॉरिटी में कोई लिमिट ही नहीं है। तुम मेरे बिहाफ पे कुछ भी कर लोगे, बैंक लूट लाओगे, नहीं। अथॉरिटी एक लिमिट के साथ आती है, अथॉरिटी एक जिम्मेदारी के साथ आती है, अथॉरिटी एक प्रॉमिस के साथ आती है। अथॉरिटी का मतलब है कि मैं आपके नाम का कोई मिसयूज नहीं करूंगा, मैं जो भी करूंगा आपके हित में करूंगा और आपके हित के बाहर कुछ भी नहीं करूंगा। मैं आपके खिलाफ कोई भी गलत कार्रवाई होने से पहले 10 बार सोचूंगा। मैं आप पे पूरी तरह से ट्रस्ट करता हूँ और आप भी मुझ पे पूरी तरह से ट्रस्ट करिए। अथॉरिटी हमेशा बेटा एक लिमिट में आता है और उस लिमिट में बहुत सारे प्रोमिसेस होते हैं, बहुत सारे राइट्स होते हैं, बहुत सारी ड्यूटीज हो सकती हैं, बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं, तब जाके वो लिमिट बनती है। कुछ लिमिट हम बता देते हैं, कुछ लिमिट उसे व्यक्ति को वैसे ही पता होती है। जैसे कि आप स्कूल की मार्कशीट लाए एंड यू हैव फेल्ड इन 2 or 3 सब्जेक्ट्स। अब आपने अपनी मम्मी का साइन करा, आपको पता है दैट यू हैव चूजन योर लिमिट्स इन अ रॉन्ग वे। आपने उनके नाम का क्या करा है? मिसयूज करा है। ओके, आपके फादर का कोई गवर्नमेंट लेटर आया एंड यू वांट टू जस्ट रीड इट, आपने कहा वो नहीं है, मैं साइन कर देता हूँ, फादर इज इन द हाउस। आपने उनके नाम का गलत यूज करा है। तो लिमिट्स आर वेरी वेरी एसेंशियल। जिसको भी ये ध्यान ना रहे कि लिमिट्स क्या है, तो लिमिट्स में बेटा बहुत सारी एन नंबर ऑफ थिंग्स, वैल्यूज, ड्यूटीज, राइट्स, ऑब्लिगेशंस, परफॉर्मेंस, ये सब लिमिट का पार्ट है। हमें भूलना नहीं है कि हमारी क्या लिमिट है। क्लियर? क्योंकि बेसिकली हम मालिक नहीं है, वी आर नॉट दी प्रिंसिपल्स, वी आर दी एजेंट्स। क्लियर है सबको? नेक्स्ट, ड्यूटीज एंड दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वेरी गुड, ड्यूटीज एंड दी, अच्छा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्यूटीज एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज? ये दो अलग अलग शब्द कैसे हो सकते हैं? हम एक साथ ही क्यों नहीं लिख लेते? क्या मैंने सिर्फ यही क्यों नहीं लिख दिया कि ड्यूटीज? ड्यूटीज का मतलब है बेटा जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है जवाबदेही। फॉर एन एग्जांपल, आपके फादर ने आपको 1 लाख रुपए दिए एंड कहा यू जस्ट गो एंड सबमिट योर एनुअल फीस। आपने रुपए ले लिए और आपने 1 लाख रुपए खो दिए या आपने 1 लाख रुपए का कोई मिसयूज कर दिया। आप रिस्पॉन्सिबल हैं उसको कि आप उसे ढूंढ के लाएं। आपने कैसे खो दिए, आपकी जवाबदेही है। तो there are 2 different words, duties and the responsibilities. A father can fulfill the duties. आपके पिताजी अपनी ड्यूटीज फुलफिल कर सकते हैं। He is having another responsibilities also. अगर आज का आपको 1 लाख रुपया दे चुके हैं तो कल दूसरे बच्चे की भी फीस सबमिट करनी है। You are not only the responsibility of your father. आप सिर्फ उनकी इकलौती रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो इन दैट केस उनकी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो सकती हैं और अपनी वो हर रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति अपनी ड्यूटीज फुलफिल कर रहे हैं। इट कुड बी द पॉसिबिलिटी कि उनकी एक ड्यूटी से उनकी एन नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल हो रही हो। फॉर एन एग्जांपल, कि आपके फादर डीएम है, अब उनकी सोर्स ऑफ अर्निंग बहुत अच्छी है। अब इन दैट केस वो अपनी एक नौकरी से सोसाइटी के लिए भी फुलफिलमेंट कर रहे हैं, आपको भी फुलफिलमेंट कर रहे हैं, घर में भी पैसा दे रहे हैं, अपने माँ बाप को भी पैसा दे रहे हैं, आपके भाई बहन को भी पढ़ा रहे हैं। तो ड्यूटी उनकी एक ही चल रही है, लेकिन वो उसी ड्यूटी से एन नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर पा रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, हो सकता है कि आपके फादर एक प्राइवेट जॉब में हो, बहुत अच्छी जॉब हो, 9 to 9 की जॉब, 9 to 5 की तो जॉब एग्जिस्ट ही नहीं करती, मिनिमम 12 आवर्स जॉब अब कॉर्पोरेट्स में होती है, ठीक। और लेकिन आपके फादर सोशल सर्विस नहीं कर रहे हैं, कोई सोशल सर्विस नहीं कर रहे हैं, उनके पास इतना भी समय नहीं है कि वो प्लांटेशन डे पे एक प्लांट लगा दें। तो वो ड्यूटीज तो फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन ही इज नॉट फुलफिलिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी। तो दे आर टोटली 2 डिफरेंट वर्ड्स। तो एजेंसी में जो एजेंट होता है उसकी कुछ ड्यूटीज होती है और उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जैसे कि टू टेक गुड केयर ऑफ द एम्प्लॉइज, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टू मेंटेन द हाइजीन, ये मेरी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मेरी ड्यूटी है कि मैं सारा सामान लाके उनको दूंगा, बट इट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो टू टेक गुड केयर ऑफ द एम्प्लॉइज, टू लिसन टू द एम्प्लॉइज, पेशेंटफुली हैंडलिंग
the employees, customer orientation of the employees, customer feedback of the employees, after sales services of the employees. ये सब मेरी क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी ड्यूटीज क्या हो सकती है. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई एम एजेंट, मैं मैनेजर हूँ वहाँ का, सैलरी टाइम से आ जाए, अटेंडेंस प्रॉपर मेंटेन, मुझे पता हो किसका क्या अप्रेजल होना है, तो दिस कुड बी माय ड्यूटीज एंड द नेक्स्ट कुड बी माय रिस्पांसिबिलिटीज. क्लियर? एंड फिफ्थ इज कंपनसेशन. वेरी नाइस. कंपनसेशन का मतलब है कि आपने क्या कीमत पे हाँ बोली कि हाँ ये काम मैं आपको करके दूंगा. What the amount you have decided and the company has decided कि आपको मैं ये पैसे दे रही हूँ. It could be salary, it could be wages, it could be fringe, it could be perks. जैसे आप कहें कि 7 lakhs तो मुझे annual चाहिए direct, but 3 lakhs can be the perks. Perks in the form of कि आप TADA complaint ले लें, आप HRA ले लें, ठीक है, आप छुट्टियों को इनकैश करा लें, ठीक. It could be in the form of perks. ठीक, तो आपका टोटल पैकेज कितना पहुंच गया? आपका टोटल पैकेज विल लाइक 10 lakhs. टोटल पैकेज आपका कितना हो गया? इट वुड बी लाइक 10 lakhs. लेकिन उस केस में क्या है? उस केस में कुछ पार्ट आपका कंपनसेशन का डायरेक्ट है और कुछ पार्ट आपका कंपनसेशन का इनडायरेक्ट है. तो कंपनसेशन इज अ म्यूचुअल अमाउंट डिसाइडेड बिटवीन यू एंड द कंपनी. डिसाइडेड बिटवीन यू एंड द कंपनी कि किस अमाउंट पे आप काम करना चाहते हैं. नेक्स्ट, ड्यूरेशन एंड दी टर्मिनेशन. ड्यूरेशन ऑफ द एजेंसी का मतलब होता है कब तक है, और टर्मिनेशन का मतलब होता है कि कब तक एजेंसी चलेगी. देयर आर फ्यू एजेंसीज जिसमें कोई टर्मिनेशन ही नहीं होता. फॉर एन एग्जांपल, वो खत्म ही नहीं होती. जैसे आपने कोई एनजीओ रजिस्टर करा, क्योंकि वो नो प्रॉफिट नो लॉस है. अगर वो लॉस में भी जा रही है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्हें बंद नहीं कर सकती, है ना. तो जब वो बंद ही नहीं कर सकती है तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है. It could not be terminated. Clear to everyone? And there are few agencies जिनका टर्मिनेशन होता है कि अगर 5 साल तक अच्छे से नहीं चली, उन्हें बंद कर दिया जाएगा. आपके सिटी में ही बहुत सारी ऐसी शॉप्स होंगी, बहुत सारी ऐसी एजेंसी होगी जो आपने देखा होगा कि पहले चलती थी और अब नहीं चलती. जैसे टीवीएस, लूना का स्कूटर, नैनो, खत्म, कोई नहीं ले रहा उसकी एजेंसी क्योंकि परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी नहीं थी. ठीक है. आपके HMD वॉचेस कहीं आपको दिख रहा है? खत्म, कोई भी नहीं ले रहा, है ना. तो इट कुड बी द पॉसिबिलिटी कि आपकी जो एजेंसी है वो टर्मिनेट हो जाए. ठीक. अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. फॉर एन एग्जाम्पल, HMD वॉचेस, लूना का स्कूटर बिल्कुल खत्म, आपको कोई दिखेगा ही. नैनो भी कोई सेटिस्फैक्टरी नहीं है, नहीं लेता. ठीक. लेकिन बाकी चीजें चल रही हैं. हो सकता है कि इनकी बाकी चीजें चल रही हो पर इसकी कोई बेसिक चीजें अभी हमको पसंद नहीं. अब एग्जाम्पल, जॉन जो कि ओनर है छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, एंटर करता है एक एजेंसी के एग्रीमेंट में. वो सहारा जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है उसके साथ एग्रीमेंट करता है. तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक जॉन नाम है जो बेसिक शब्द है बेटा. दूसरा ये एक बंदा है जिसके साथ वो एंटर करा है कॉन्ट्रैक्ट. वो नेगोशिएट करता है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में आऊंगा और मैं कंपनी में काम करूंगा कस्टमर के पॉइंट पे. कहाँ काम करूंगा? कस्टमर के पॉइंट पे. सहारा एग्री होता है, प्रमोट करता है अपने प्रोडक्ट को जिससे कि अच्छे से अच्छी उनकी एजेंसी चल जाए. वो ये कहता है कि जब भी मैं किसी कस्टमर को लाऊंगा तो मैं कमीशन बेस पे लाऊंगा और इसके हर चीज के लिए मुझे कुछ ना कुछ फैसिलिटेट करा जाए. इस तरह से उनकी कंपनी चलती रहती है और कंपनी में कोई भी टर्मिनेशन तब तक नहीं होता जब तक कंपनी में कोई रीजनेबल नोटिस ना आ जाए. तो हमें इन समरी समझ में आया कि अगर दो लोग आपस में मिल जाएं और म्यूचुअल बेनिफिट पे काम करें तो बहुत अच्छे से एजेंसी चला सकते हैं. डन. नाउ क्रिएशन ऑफ द एजेंसी. एजेंसी कैसे क्रिएट की जा सकती है? ओके. द फर्स्ट इज एक्सप्रेस्ड एजेंसी. हमने बात करी, हमने स्कोप समझा, हमने डिस्कस करा
और फिर हमने आपस में आके एक दूसरे से बात करके एजेंसी में मिलजुल के पैसा लगाना शुरू करा, जैसे कि हम आजकल शार्क टैंक देख रहे हैं। तो दैट इज नोन एज क्रिएशन ऑफ द एजेंसी थ्रू द expressed agreement. Clear? Now the next is implied agreement. Now implied is what? कि हम किसी के बिहाफ पे उसमें एंटर हुए। फादर थे मेरे, अभी एजेंसी अच्छी चल रही है ना, आई एम द नेक्स्ट ओनर, मुझे किसी को कुछ कहना नहीं पड़ा, अब मैं ही हूँ मालिक, मैं ही जाके एजेंसी चलाऊंगा। तो दैट इज बेसिकली ऑन द इम्प्लाइड बेसिस। मेरी नॉलेज में ये बात है कि मेरा कंसेंट है, या मुझे ये चीज पहले से पता है कि मुझे ये कंसेंट एक्स्ट्रा देने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह से क्या है कि एजेंसी रिलेशनशिप है थ्रू द बेसिस ऑफ द इम्प्लाइड बेसिस। एपरेंट अथॉरिटी, एपरेंट अथॉरिटी का मतलब है कि प्रिंसिपल ने मुझे अलाउ करा है कि मैं इस एजेंसी का पार्ट भी बनूं, चाहे मेरा एक्सप्लिसिटली इन्वॉल्वमेंट हो या फिर ना हो सकता है मैं उनका पुराना बहुत अच्छा बहुत जिम्मेदार व्यक्ति रहा हूं, मैंने कोई नई एजेंसी खोल ली और उन्होंने मुझे फिर से उसका एक्सप्लिसिटली क्या बना दिया है, ओनर। ओनर मींस कि मैं वहां जाऊंगा और मैं वहां प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करना शुरू करूंगा। बाय दी रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन का मतलब होता है बेटा कि एक इंसान खुद से ये जिम्मेदारी ले कि मैं किसी दूसरे के बिहाफ पे ये काम प्रायोरिटी से पूरा करके दूंगा। ठीक, दैट इज नोन एज रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन में दोनों लोग, एजेंट भी और प्रिंसिपल भी, बाउंडेड होते हैं कि तुम मेरे बिहाफ पे काम करोगे और मैं तुम्हारे बिहाफ पे काम करूंगा। जितनी बार भी एजेंसी अच्छी चलेगी मैं तुम्हें पैसे दूंगा, और एजेंट कहता है कि जी सर मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा काम करके दूंगा। एंड बाय द ऑपरेशन ऑफ द लॉ, किसी की जरूरत ही नहीं है, सरकार खुद ही गार्जियन है और सरकार खुद ही कह रही है कि इस तरह की एजेंसीज को रन करा जाए। जैसे कि अंडर 18 इलेक्शन में आप वोट नहीं दे सकते, तो गवर्नमेंट की खुद ही एजेंसी है एनटीए, जिसमें ये कहा जाता है कि क्या नियम क्या कानून है कि हम वोट दें या फिर हम वोट ना दें। क्लियर टू एवरीवन? थैंक यू।